Assalamu alaikum everyone. Welcome to the online session of clinical examination for FCPS Cardiology 2020. My name is Dr. Hasib Raza and I am working as Cardiac Electrophysiology Fellow at the National Institute of Cardiovascular Diseases, Karachi. Today, the topic of discussion is short case on prosthetic valves. And for this discussion, I have invited a special speaker from Lahore. His name is Dr. Noor Dastagir. Dr. Noor is MRCP, FCPS Cardiology, and member of American College of Cardiology. He is coronary and peripheral interventional cardiologist, and currently he is working as assistant professor of cardiology at Jinnah Hospital, Lahore. So let's greet our speaker. Assalamu alaikum, Dr. Noor. How are you? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हसीब फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू अल्लाह पाक के नाम से करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम I want to welcome my fellow colleagues, any senior who is attending this, and definitely the stars of the show, the future consultants of tomorrow. So assalamu alaikum and welcome to this. I'll try to keep this a short and to the point presentation. Definitely clinical की class online लेना and in a one way fashion लेना is definitely a challenge both ways, but I'll try to keep it short and brief. Before we start, since I'm on this forum, so I would like to appreciate Dr. Hasib for this wonderful effort that he's done. He's been basically a one-man army who's collected all the cardiologists from all over the Pakistan in service for this examination and for all the candidates appearing in the exam. So I think it's a job well done, and आपको जितना भी appreciate किया जाए इसमें, that would be less. Thank you, Dr. Noor, for the precious words. Secondly, मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि I've been coordinator for the exam for the past many years. I've had the honor of observing and talking to and seeing and basically looking through the thought process of many examiners, how they think and how they ask the questions and what they're looking for. So I'll be able to hopefully give you a brief overview, okay, what's important in a short case and what's not before we head on to our topic for the day. So before you just start your presentation, Dr. Noor, I will just throw a message for the our participants. It is a usual message which I say every time, that if you have any questions regarding today's topic or any other topic, you can take the advantage of the experience that Dr. Noor has regarding the examination. So you can ask all type of questions, and after Dr. Noor completes his presentation on prosthetic valves, I will try to ask all of your questions from him, और मेरी कोशिश होगी मैं सारे सवालों के जवाब मिनिमम टाइम में आपसे ले सकूं. So Dr. Noor, over to you. बिल्कुल डेफिनेटली जी ज़रूर क्वेश्चंस पूछें बिकॉज मेरा जनरली क्लास लेने का मेथड भी ये होता है, यूजुअली इनकरेज टू वे कम्युनिकेशन. एक्चुअली वन वे लेक्चर्स काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं एंड मतलब डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाते हैं. आई एक्चुअली टुक अ कपल ऑफ सेशंस टू सी कि कितना अटेंशन स्पैन रहता है आपका थ्रू आउट द आवर, एंड मेरे से तो पूरा घंटा जो है वो पूरा लेक्चर नहीं सुना जाता frankly speaking. So if you are maintaining concentration throughout, so hats off to all the candidates. That's why I'll try कि मैं आपको थोड़े pointers करके दूं and पूरा एक lecture ना देता चला जाऊं. So before we go to the prosthetic, I'd just like to take about 10 minutes to brief you about some basic tips and pearls जिनको आप कह सकते हैं short case attempt करने के, since I have this forum right now. फॉर ऑल द न्यू कैंडिडेट्स आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेटअप कैसे होता है, ताकि आप जितना ज़्यादा वेल अवेयर होते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, उतना ज़्यादा एग्ज़ाम देना सॉर्ट ऑफ ईजी हो जाता है. चीज़ें नज़र आ रही होती हैं क्योंकि आपको पहले से वो आपने सुनी भी होती है, एग्जाइटी थोड़ी सी कम हो जाती है. सो व्हेन यू गो फॉर द क्लिनिकल एग्जाम ऑन योर क्लिनिकल डे, टॉक्स देने के बाद, सो यू विल बी ब्रीफ्ड बाय द कन्वीनर, एंड उसके बाद
you'll be taken probably लाहौर वाले सेंटर में, तो I know क्योंकि I've been there. बाकी जो लोग बाकी cities से कह रहे हैं can't really say कि कराची बाकी जगहों पे क्या setup होता है, so basically just be talking about Lahore. So you'll be taken to the first floor. वहाँ पे आप होंगे in the waiting area. Initially पहले हम short cases से start करते थे, लेकिन अब the recent practice यही है कि पहले long cases से start करते हैं for reasons you don't need to bother yourself with. तो लॉन्ग केसेस में इसी तरह होगा कि 2 बैचेस होंगे, आप पहले जाएंगे, एक बैच जाएगा, फिर दूसरा बैच जाएगा, तब तक दूसरा बैच जो है वो वेट ही कर रहा होता है. सो वंस यू डन विद लॉन्ग केसेस, तो फिर आपके शॉर्ट केसेस जो हैं वो ऑब्वियसली दे विल बी सेट अप एंड यू विल बी टेकन फॉर शॉर्ट केसेस अगेन 2 बैचेस में. व्हेन यू एंटर द रूम, तो यू विल बी मेड टू सिट ऑन अ टेबल जहाँ पे आपके रोल नंबर्स वगैरह सारे होंगे. आफ्टर दैट देयर आर 2 साइड्स टू द हॉल, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे. यू विल बी टेकन टू वन ऑफ द साइड्स, आपके सारे केसेस उसी साइड पे रोटेट होंगे. एंड सिमिलरली हाफ कैंडिडेट्स लेफ्ट पे जाएंगे और हाफ राइट पे. एंड आपके 4 शॉर्ट केसेस होंगे. बीच में रेस्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट स्टेशन हो, और मतलब इट्स अ ऑप्शनल थिंग डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोग उस दिन अवेलेबल हैं. सो 4 शॉर्ट केसेस आपने अटेम्प्ट करने, ईच विल बी 10 लास्टिंग 10 मिनट्स. इसमें 5 मिनट्स आपने एग्जामिनेशन करना है, 5 मिनट्स में आपसे उसका वाइवा होगा और आप मौका दिया जाएगा कि आप पहले बताएं और फिर आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे. सो रिगार्डिंग दैट, व्हेन यू अप्रोच द शॉर्ट केस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. बहुत सारे लोगों को नहीं पता, because I've had this honor of being there and seeing the thought process behind the examiners, तो मैं आपको बहुत clarify कर सकता हूँ. कमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी. जब आप शॉर्ट केस पे जाएंगे तो कुछ एग्जामिनर्स आपको कहें, बेल बज जाएगी एंड दे विल आस्क यू टू स्टार्ट, एंड कुछ एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली पॉइंट करेंगे कि ये कमांड लगी हुई डॉक्टर साहब, कमांड देखिए एंड फिर स्टार्ट करें. सो अच्छी बात है कि वो आपको कमांड की तरफ पॉइंट करते हैं. कभी एग्जाम की एंग्जाइटी में जो है वो आपको नहीं याद रहता कि कमांड भी देखनी है. कमांड देखना बहुत ज़रूरी है, बट उस कमांड से फर्दर मतलब नहीं निकालना. बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे कि जी अगर तो उन्होंने रेलेवेंट लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि आप सोचें कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है, या ये हो सकता है, वो हो सकता है, और ये वाले डायग्नोसिस निकल गए. तो ऐसी बिल्कुल साइंस नहीं लगानी, बिकॉज आई हैड मेनी एग्जामिनर जिनमें से, क्योंकि 2 का सेट होता है ना, तो एक एग्जामिनर जो है वो रेलेवेंट लिखना चाह रहा होता है, एक नहीं लिखना चाह रहा होता है. अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो सीनियर एग्जामिनर होता है उसी की बात मानी जाती है. तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि आपको रेलेवेंट कमांड किस स्टेशन पे देते हैं, किस पे नहीं देते. प्लीज़ रेलेवेंट के शॉर्टकट्स नहीं निकालें, उससे कोई प्री कंसीव नहीं करना कि आगे जाके ये डायग्नोसिस हो सकता है. रेलेवेंट लिखे होने की कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है डायग्नोसिस से. कुछ एग्जामिनर्स लिखना पसंद करते हैं, कुछ नहीं लिखते, कुछ उन जगहों पे भी लिख जाते हैं जहाँ पे शायद रेलेवेंट होने की कोई रेलेवेंस नहीं है. तो एक चीज़ तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग मैंने सुना है, एंड एक्चुअली मैंने देखा है लॉट ऑफ पीपल सीन डिस्कसिंग कि जी अगर रेलेवेंट लिखा होगा तो फिर ये डायग्नोसिस हो सकते हैं, और अगर नहीं लिखा होगा तो फिर ये नहीं करना. दूसरी जो कमांड दी गई उसको बहुत गौर से देखना है कि आपको ऑस्कल्टेट कहा गया है, आपको एग्जामिन कहा गया है, आपको प्रिकॉर्डियम कहा गया है, आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा गया है. अब वैसे रिसेंट बहुत अरसे से नहीं देखा, लेकिन कभी कभी आपको कोई एग्जामिनर जो है वो इस तरह की कमांड भी दे देता है कि लुक एट द नेक, या लुक एट द जेवीपी एंड देन प्रोसीड, या लुक एट द नेक एंड देन प्रोसीड. सिंपल एग्जामिन द प्रिकॉर्डियम कमांड नहीं होती, जो कि फिर आई लाइक टू अगेन से इट कि ये पिछले बहुत अरसे से तो नहीं देखा ऐसा कुछ होता हुआ, लेकिन हो सकता है. तो कमांड देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑस्कल्टेट कहा गया है, आपको एग्जामिन द प्रिकॉर्डियम कहा गया है, एग्जामिन द कार्डियोवैस्कुलर कहा गया है, या फिर कुछ और कह दिया गया. तो जो भी आपको है परेशान नहीं होना. ऐसी कमांड आना कि एग्जामिन जेवीपी या ऐसी कोई चीज़ हो और उसके बाद प्रोसीड करें, तो एक्चुअली वो आपके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि बड़े थोड़े से डायग्नोसिस होते हैं जो कि इस तरह की चीज़ में आ सकते हैं. तो इसलिए परेशान नहीं होना. जो भी है आप वैसे उस चीज़ से स्टार्ट करें एंड फिर अपना कैरी ऑन करें. सेकंड चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जिस कमांड पे सिर्फ ऑस्कल्टेट भी लिखा होता है, कुछ कैंडिडेट्स उसमें एपेक्स बीट नहीं लोकलाइज करते, एंड ऑब्वियसली ऑस्कल्टेट लिखा होता है, उस ऑस्कल्टेट से ही स्टार्ट कर देते हैं. एपेक्स बीट आपका राइट है, पल्स करोटेड आपका राइट है. आपको उन्होंने जैसे मर्जी का है, एग्जामिन का है, ऑस्कल्टेट का है, व्हाटसोएवर, एपेक्स बीट देखना और करोटेड पल्स देखना आपका राइट है. आप हर केस में देख सकते हैं.
इस पे मैं थोड़ी देर बाद दोबारा कुछ फोकस करूँगा कि ये देखना क्यों ज़रूरी है, बट एक चीज़ ये क्लैरिफाई ज़रूर करता चलूँ कि आप कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बल्कि रादर अगर आप एपेक्स बीट नहीं देखते तो एक्चुअली एपेक्स बीट हर पेशेंट की फ़र्क हो सकती है। देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग कि वो कहाँ पे है। तो आप माइट्रल एरिया नहीं पाएंगे जब तक आप एपेक्स बीट नहीं देखेंगे। सो फोर्थ या फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में रखना मिड क्लाविकुलर लाइन में ज़रूरी नहीं है कि उसकी माइट्रल एरिया वहीं पे हो, शिफ्टेड भी हो सकता है। तो विदाउट एपेक्स बीट आप माइट्रल एरिया सही देखेंगे ही नहीं एंड आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। हेंस एपेक्स बीट देखना बहुत ज़रूरी है, उस पर टाइम लगाएं और उसको ज़रूर देखें। और सिमिलरली हाँ, पेरिफेरल पल्सेस कुछ एग्जामिनर्स माइंड कर जाते हैं अगर ऑस्कल्टेट की कमांड हो, लेकिन करोटेड पे हाथ रखना अगेन आपका राइट है। अपनी आदत बनाएं कि करोटेड ही देखें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आदत होती है रेडियल पल्स देखने की, प्लीज़ नाउ इज़ द टाइम कि उस आदत को छोड़ दें, करोटेड पल्स को अपना फ्रेंड बनाएं। दैट ऑब्वियसली गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन, इट्स जस्ट कि हम यूज टू नहीं होते, सो उससे यूज टू हो जाएं अगर आप नहीं हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स। सिमिलरली मूविंग ऑन, अब आपका केस स्टार्ट हो गया है, नाउ यूर अप्रोचिंग द केस। सो आई जस्ट लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मतलब जनरली एवरीवन हु इज वाचिंग, जस्ट टेक 10 सेकेंड्स एंड उसका जवाब लिख दें या हसीब देख लेते हैं, या जस्ट लेट्स डिस्कस ऑन इट फॉर अ मिनट। जब भी आपको शॉर्ट केस दिया जाता है तो व्हाट्स योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, आप सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? जी सी ओके वैसे ही फॉर जस्ट फॉर डिस्कशन से, जब भी आपके पास ओके। एक सामने शॉर्ट केस आता है, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू? हाँ सर, मेरे पास क्या है ना डॉक्टर नूर, जवाब आने शुरू हो गए हैं। लेट मी टेक अ लुक। मैं चाह रहा हूँ कि जो वो जवाब दे रहे हैं। पहली बात, ओके जी, द फर्स्ट कमेंट दैट आई गॉट इज इंस्पेक्शन, द सेकंड कमेंट आई गॉट इज कंसेंट, the बिल्कुल third ठीक, thing the third thing is scar, and so on. बिल्कुल सही, सही, दैट्स Introduction. बिल्कुल सही, दैट्स वेरी गुड। ये सारी चीज़ें एक्चुअली थियरी में बहुत अच्छी लगती हैं, बट अगर रियलिस्टिकली हम देखें, नहीं नहीं, मैं वैसे ग्रीटिंग्स एंड ऑल दैट वो सब होने के बाद आई एम जस्ट सेइंग, whenever we have a short case in front of us, हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है टू डाइव इनटू इट विद आवर स्ट्रेंथ। हम सिर्फ ऑस्कल्टेट करना चाहते हैं। जब भी हमारे पास कोई क्लिनिक में पेशेंट आ जाता है, कोई हॉस्पिटल में पेशेंट आ जाता है, हमें कहते हैं यार कि ये इसमें कोई फाइंडिंग्स हैं देखो, सो जब वी वांट टू गो देयर, सो वी जस्ट वांट टू डाइव इन विद आवर स्टेथोस्कोप। जब आप फॉर एग्जांपल कोई केसेस अपनी एग्जाम की तैयारी में जाते हैं, यू वांट टू गो टू पीआईसी या मेयो हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिन्ना जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, गुलाब देवी जा रहे हैं, जाके केसेस देख रहे हैं, सो जब आप केस देखना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं और साथ स्टेथ रखते हैं और देख लेते हैं कि इसकी फाइंडिंग्स कैसे। ओवरऑल हमारा सॉर्ट ऑफ कुछ सिस्टम ऐसा है कि हम समझते हैं कि ऑस्कल्टेशन इज आवर बेस्ट फ्रेंड इन अ शॉर्ट केस। Any person who believes that will have a very hard time passing. ये जो आपकी एग्जामिनेशन की स्टेप्स हैं, दे हैव बीन मेड आफ्टर प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस एंड जाहिर है इनके पीछे कोई एक, जिसे कहते हैं कि एक साइंस है। हम कह तो देते हैं फर्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन है, पर इंस्पेक्शन करते नहीं है, और ख़ास तौर पे एग्जाम में जाके तो बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरी चीज़ मैं ये क्लैरिफाई करता जाऊँ कि एफसी इज नॉट एन एग्जाम ऑफ शोमैनशिप। आपको अगर कभी किसी ने भी कहा है, या इफ यू थिंक कि आपने सिर्फ स्टेप्स पूरे करने हैं तो उससे काम हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। FCPS 2 इज़ नॉट एन एग्ज़ाम ऑफ शोमैनशिप। हर स्टेप की बहुत इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस है एंड वो आपको ओवरऑल डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। इट्स एक्चुअली वेरी फिटिंग फॉर टुडेज केस कि हमारा कुछ केस ऐसा है कि जो इंस्पेक्शन और पैल्पेशन से ही होने वाला है, तो आपको ऑस्कल्टेशन की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इट्स जस्ट अगर आपकी इंस्पेक्शन और पैल्पेशन अच्छी है, पहले ही परकशन ऑब्वियसली हम नॉट अ पार्ट ऑफ द रूटीन, so that's already out. It's just two things, inspection आपने करनी है, palpation आपने करनी है, and then you can move on to auscultation. But if you'll be jumping on to auscultation, तो definitely अब बहुत सारी की information जो है वो मिस कर जाएंगे, and that will lead
to a delayed या a wrong diagnosis. अब इसकी implication क्या है? इसकी implication ये है कि आप जब भी कोई केस देखते हैं, just आपके पास 5 मिनट है. That is a lot of time. We are basically, at least जना हॉस्पिटल में हमारे रेजिडेंट ट्रेनिंग में we train our residents कि उनको 3 मिनट्स में हम we train them कि आप अपनी केस जो है उसको एग्जामिन करें and give the findings. However, 5 minutes is a lot of time for a short case of cardiovascular disease. I would strongly urge कि at least 1 minute spend करें inspection पे. अच्छी तरह पेशेंट को जो है obviously exposure अपना proper रखें. Go to the foot end, come very close to the precordium and see कि क्या मिल रहा है आपको. You can see visible pulsations जो कि आपको पहले ही बता सकती हैं कि apex beat जो है वो बहुत displaced है. बहुत बाहर आपको visible pulsations मिल रही हैं. Telling you beforehand कि पेशेंट को कोई वॉल्यूम ओवरलोडेड कंडीशन है, AR या MR probably हो सकता है. पेशेंट की आपको बड़ी वेल सस्टेन्ड सी हीव, अच्छी हीव होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में कभी-कभी अनडिस्प्लेस्ड है. You would know कि probably pressure overloaded condition या है या फिर dominant होने का चांस ज़्यादा है. इसी तरह ही palpation की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसमें अगर आपको एपेक्स बीट नहीं मिली, आई कैंट स्ट्रेस इनफ कि अगर आपको एपेक्स बीट नहीं मिली प्लीज आगे प्रोसीड ना करें. आपको 2 मिनट लगाने, आपको 3 मिनट लगाने, एपेक्स बीट ढूंढे बगैर आपने आगे नहीं जाना. जब तक एपेक्स बीट नहीं मिलेगी शॉर्ट केस ठीक नहीं होगा. एपेक्स बीट के मिले बगैर आप बिल्कुल इन द ब्लाइंड है. एपेक्स बीट विल डिटरमिन एवरीथिंग फॉर यू. वॉल्यूम ओवरलोडेड कंडीशन है, प्रेशर ओवरलोडेड कंडीशन है, डोमिनेंट कौन सी है, ज़्यादा कौन सी है, डेक्स्ट्रोकार्डिया भी हो सकता है. वैसे तो एग्जाम में बहुत अरसे से नहीं देखा, लेकिन फॉर दैट मैटर अगर आपको एपेक्स बीट मिली ही नहीं, आपने कहा चलो कोई नहीं, वही ऑस्कल्टेशन पे देखी जाएगी, तो आप एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस मिस कर सकते हैं. क्या पता हो ही ना, फील ही नहीं हो रही, आपने लेफ्ट आर्टल करा के भी देखा तब भी नहीं आ रही, और आप दूसरी तरफ हाथ रखना भूल गए, तो क्या पता पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया हो. एपेक्स बीट जब तक नहीं मिलती आगे नहीं जाना. नहीं मिली, पेशेंट को लेफ्ट लैटरल कराएं, जैसे भी करना है एपेक्स बीट ज़रूर देखें. ऑब्वियसली फिर उसके बाद एपेक्स बीट जब आपको मिल जाती है उसको लोकलाइज करें, देखें हीविंग है, थ्रस्टिंग है, वेल सस्टेन्ड है, एल सस्टेन्ड है, टैपिंग है, व्हाटसोएवर, उस पर एक प्रॉपर अपना फर्म थॉट प्रोसेस माइंड में क्लियर करें एंड देन मूव के आरवी हीव है कि नहीं है, पैल्पेबल हार्ट साउंड्स हैं कि नहीं है, कोई थ्रिल फील हो रही है कि नहीं. एंड ऑब्वियसली इस पॉइंट तक अगर आपको कोई सिस्टोलिक थ्रिल आ रही थी तो यू वुड नो कि कोई एएस या कोई एमआर या कोई एसवीएसडी कोई ऐसी चीज़ है. अगर आपको डायस्टोलिक आ रही है तो मे बी एआर है, मे बी एमएस है, कोई ऐसी चीज़ है. एपेक्स बीट डिस्प्लेस थी तो दैट मीन्स कि एआर एमआर होने के ज़्यादा चांसेस हैं. नहीं हो रही तो एएस एमएस होने के ज़्यादा चांसेस हैं. सो यू सी के इंस्पेक्शन और पैल्पेशन से बिफोर यू रीच्ड ऑस्कल्टेशन यू हैड अ वेरी वेरी शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट कि आपके पास ऑलरेडी 10-15 से 2 या 3 डायग्नोसिस जेन में रह गए थे, जो कि जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो आप उसको बड़ा प्रॉपरली रिफाइन कर लेंगे और एक अच्छे से डायग्नोसिस की तरफ चल पड़े. और दैट इज इट. इफ़ यू जस्ट फॉलो दीज थिंग्स तो शॉर्ट के सही करना कोई मुश्किल बात नहीं. सो दैट्स ऑल. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो विल टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन. I've taken up a lot of time short case की जनरल बातें करते हैं, but I just thought के these are some of the tips that I can share with you. Let's move on to our presentation of the prosthetic valves. These were the very very informative point for all the participants. चाहे आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं या आप या फर्स्ट ईयर हैं, सेकंड ईयर रेजिडेंट हैं, फाइनल ईयर रेजिडेंट हैं, बहुत ज़बरदस्त. ये वो बातें जो कि आमतौर पे यूजुअली लोगों को बिल्कुल जस्ट 1 मंथ पहले 2 मंथ पहले एग्जाम में जाने से पहले लोगों को पता चलना शुरू होती हैं. तो वो इस वक्त हमारे पास मोर देन 112 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त. तो डेफिनेटली ये सब के सब एग्जाम देने तो नहीं जा रहे, लेकिन इसमें वो लोग हैं जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है, सेकंड ईयर रेजिडेंट है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. और ये बातें अगर उनको अभी से पता चल रही हैं और वो अभी से इस प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो कोई उनको फेल नहीं कर सकता. आई एम श्योर. डेफिनेटली अगर आप अपने बेसिक्स ठीक रखें, ऑलवेज रिमेंबर अगर आपके बेसिक्स ठीक है ना तो आप you'll always go a long way. आपको गलत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Just never forget your basics.
मैं आपको बता सकता हूँ एक I've actually seen this happen. A candidate was passing. सारा कुछ उसका ठीक था. His long case was passed, Stokes पास थे, 2 short case पास थे, चलें एक नहीं था. And what was his turning point कि एक short case जो उन्होंने diagnosis भी सही दे दिया, सिर्फ उन्होंने patient को उठा के नहीं बिठाया. Leaning forward पे base नहीं. Dr. Noor, are you there? I think there is some problem because of the internet issue from your side. If he can check that, uh, yeah, I think there is definitely a problem on the other side. So I will try to contact Dr. Noor through my mobile if he can come online as soon as possible. Sorry for that, dear participants. You will have to wait for 1 minute, 1.5 minutes. I think he's back. I think he's back. Dr. Noor, are you there? जी I think वो connection drop हो गया था. Okay, no problem. You can start from जहाँ पे आपने left किया था. You can just start from there. अभी जी आप बिल्कुल. experience बता रहे थे कि 2 पास थे और एक जो है. जी बिल्कुल. So I was saying कि एक कैंडिडेट थे जिनका 2 शॉर्ट केस जो हैं वो पास थे, टोक्स पास था, लॉन्ग केस पास था और एक शॉर्ट केस नहीं था. और ऑब्वियसली जो टर्निंग पॉइंट था उनका, वो एक शॉर्ट केस में उनका डायग्नोसिस भी ठीक था और सिर्फ क्योंकि उन्होंने पेशेंट को लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन में एग्जामिन नहीं किया था, सो उस बेस पे उनके नंबर काट लिए गए एंड ही वाज फेल्ड ऑन दैट स्टेशन एंड अल्टीमेटली वो अटेम्प्ट लूज हो गई. So that was just one minor mistake जिससे कि he could have crossed the line and उस दिन एग्जाम उनका पास हो जाता. So just एक छोटी सी बेसिक मिस्टेक की वजह से उस दिन वो सारी मेहनत ज़ाया होगी. सो आप जितना भी ज़्यादा अपने बेसिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो दैट. जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट केस सुनने से ढूंढने के बजाय अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने बेसिक्स पे ट्रस्ट करें, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. Dr. Noor, are you there? I think again there is some problem on the other side. Let's wait. So sometimes there are these issues regarding the internet. Uh, I think we should wait for a while and let him come back. Let him be online. He will be there. Let us wait for a few seconds. जी डॉक्टर नूर, कैन यू लिसन टू मी? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सॉरी. हाँ जी
जी सॉरी, वो मेरी आई थिंक फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने अब इंटरनेट चेंज किया। सो Okay, लेट्स सी okay, इफ अब कुछ बेहतर है। okay, no problem. Please continue. हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, I can listen to you. चलें, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक फॉर द डे, प्रोस्थेटिक वाल्व्स। स्क्रीन आप देख सकते हैं? जी, मैं देख सकता हूँ। चलें, गुड। So let's start with the topic for the day. Right, so we've done over the short case basics. We've discussed how to approach the case and what matters and what does not. So you've reached the station of the prosthetic heart valves. Right. So as I said, कि inspection की importance को जितना भी हम encourage कर रहे हैं वो फिर भी insufficient है. So when you see a patient, so obviously प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स के पेशेंट में एक मिड लाइन या ईदर वेज आपको मिड लाइन स्कार मिलेगा। अब इस स्कार की इम्पोर्टेंस ये है कि स्कार जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट हो सकता है या स्कार बिल्कुल ऐसा फेडेड सा भी हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंस्पेक्शन गौर से करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने इंस्पेक्शन अगेन शोमैनशिप में कर रहे हैं, आप अगले स्टेप्स के बारे में सोच रहे हैं और इंस्पेक्शन सही तरह नहीं कर रहे, सो यू कैन मिस अ ब्रीफ स्कार सच एज दिस वन, एंड वहीं से पूरा डायग्नोसिस आपके हाथ से निकल सकता है। सो once you've done the inspection and you've seen कि पेशेंट को एक midline sternotomy scar है, midline sternotomy scar in our part 2 examination only means कि पेशेंट का valve replaced है। obviously midline scar से या तो cabbage होगा, cabbage obviously आपके short case में देंगे नहीं। second चीज़ जो है उसमें valve replacement है, and that is the most probable thing जो वहाँ पे है। so अब now you know कि prosthetic heart valves का most likely case है। secondly आपको एक audible click की आवाज हो सकता है कि आ रही हो सकता है ना आ रही हो, बट उस पे उसको 100% ना लें, बट यूजुअली आ रही होती है। दैट क्लिक इज ऑडिबल विदाउट द स्टेथोस्कोप, अनएडेड एयर के साथ। सो यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ क्लिकिंग साउंड एंड आपको स्टेनोटमी स्कार नजर आ रहा है, सो यू आर ऑलमोस्ट नाउ 100% श्योर के पेशेंट का कोई ना कोई प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व है। And what should be going in your mind now while you're approaching this short case, while you're actually doing the inspection and seeing कि scar है, कोई और visible pulsation वगैरह या कोई और चीज़ तो नहीं नज़र आ रही, कहीं पे कोई और scar नज़र आ जाए। For that matter आपको नीचे आप उनकी legs जो हैं वो भी आप the part of the inspection आप देख रहे होते हैं, तो कहीं आप उस पर भी देख के दे सकते हैं कि कोई venous harvest scars नहीं है, तो ये और उस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि कैबेज नहीं है बल्कि प्रॉब्ली कोई वैल्व रिप्लेसमेंट ही है। सो उस वक्त आपके माइंड में क्या कुछ सवाल आ जाने चाहिए कि ऑब्वियसली डायग्नोसिस क्या है, दैट यू आंसर्ड कि प्रोबेबली प्रोस्थेटिक वाल्व है। वंस यू मेड श्योर कि कोई वीनस हार्वेस्ट स्कार्स नहीं है और थोड़ी कुछ क्लिक अगर प्रॉबेबली आ रही है, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जेन में जो आनी चाहिए दैट इज कि इफ इट इज वन वाल्व या इट्स टीवीआर, और अगर वन वाल्व है तो कौन सा है, माइट्रल है और एओर्टिक है, एंड लास्टली जो है वो कि क्या इट इज़ नॉर्मली फंक्शनिंग या फिर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है। एंड फॉर बोनस मार्क्स या एडेड अगर आप कोई चीज़ पिक कर सकते हैं तो दैट वुड बी वंडरफुल कि इफ़ यू कैन सॉर्ट ऑफ गेट अ हिंट कि अंडरलाइंग लीजन क्या होगा सर्जरी से पहले, कि अगर फॉर एग्जांपल एपेक्स बीट आपको स्टिल शिफ्टेड मिलती है तो प्रॉब्ली कोई ओवरलोडेड कंडीशन हो सकती है, जो कि अगर आप एग्जामिनर को बता देते हैं या वो पूछने पे बता देते हैं तो वो आपको फिर एडेड मार्क्स हैं उसमें। ये आपने सब जो है वो डिटर्मिन करना है और इसमें आपको तकरीबन 1 to 2 मिनट्स लग जाएंगे जब आप एक्सप्लेन करेंगे। वंस यू एग्जामिन तो जो नेक्स्ट 5 मिनट्स हैं विल नाउ बी टारगेटिंग कि वो 5 मिनट्स हमने कैसे गुजारने हैं। फर्स्ट 1 to 2 मिनट्स, 1.5 मिनट्स मैक्सिमम में आप ये बता देंगे पेशेंट को कि जी मेरी इंस्पेक्शन फाइंडिंग्स ये हैं, पैल्पेशन पे ये हैं, ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग ये हैं, ऑन द बेसिस ऑफ माय डायग्नोसिस मेरा डायग्नोसिस ये है कि एओर्टिक माइटल वाल्व है या प्रोस्थेटिक रिप्लेस्ड है या डीवीआर है, एंड दे आर नॉर्मली फंक्शनिंग या एबनॉर्मल है उसमें कोई चीज़। और नेक्स्ट आपके 3.5 मिनट्स में आपसे क्वेश्चंस होंगे। सो वाइल इस चीज़ पे हैं ऑब्वियसली अब अगेन हमें थोड़ा सा
limitation है of being online, but I've gathered some heart sounds. Agar if you can appreciate, that would be wonderful. So I'll be playing the normal heart sounds पहले, because आपको पता चले कि किस तरह से हैं and what's the difference. So if you can hear them, तो ये normal heart sounds हैं. Yes, we can hear. Good. And this is how the prosthetic mitral valve will sound like. If you are able to appreciate, उसमें जो first heart sound है, that is sort of not like the normal heart sound. Normal आपको पहले इसीलिए सुनाने का मकसद ये था ताकि आप ये difference जो है उसको appreciate कर सकें कि इसमें जो first heart sound है, that is what in theory we called metallic. थोड़ी ज़रा जिस तरह it's actually, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो कुल जिस wall clock लगी हुई होती है ना, तो sort of इस तरह की आवाज़ होती है. And यहाँ पे भी I've tried कि मैं आपको ये सुना सकूं. And similarly, aortic में जो second heart sound होगी, that will be metallic. इसमें अगर आप appreciate करें तो जो second heart sound है, that has that metallic touch to it. It's not as subtle, it's a little high pitched और थोड़ी sharp सी आवाज है. So, this is one of the most important slides जो जितने लोग आज participate कर रहे हैं. I'm going to tell you the prosthetic valve case का hack. कि how do you differentiate कि aortic valve है और mitral valve है. बड़ा simply before doing anything, कोई भी चीज़ किए हुए. Logical सी बात है, थोड़े से logic explain भी कर देता हूँ ताकि याद करने में आसानी रहे. आपका mitral valve जो है वो थोड़ा सा लोकेशन में आगे पड़ा हुआ है, और अगर आप वैसे थोड़ी सी एनाटॉमी को विजुलाइज करें तो एओर्टा क्योंकि घूम के पीछे से जा रही है तो एओर्टा थोड़ी अंदर करके पड़ी हुई होती है. फॉर दैट मैटर, अगर आपको आवाज़ बाहर बड़े आराम से आ रही है और दूर खड़े में आपको क्लिक क्लिक की आवाज़ आ रही है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन कि पेशेंट का प्रोस्थेटिक माइट्रल वाल्व है. इस चीज़ को कहीं लिख लें. When you go to see the patient, when you get the chance, इस fact को, इस hack को ज़रूर utilize करें, notice करें और फिर अपने ज़हन में उसको पक्का कर लें. अगर आपको आवाज़ आराम से आ रही है तो that is a prosthetic mitral valve. अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल से आ रही है, थोड़ा कान जब करीब आप लेके जाते हैं, जब ऑस्कल्टेट करने जाते हैं, फिर कहीं जाके क्लिक आवाज़ देती है, तो that is prosthetic aortic valve. इसकी लॉजिक याद रखने के लिए, क्योंकि माइटल थोड़ा आगे करके पड़ा हुआ है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आराम से आ जाती है थ्रू चेस्ट वॉल. एओर्टा क्योंकि ज़रा पीछे करके पड़ा हुआ है तो उसकी आवाज़ थोड़ी कम आती है. सिमिलरली इसकी यूटिलाइजेशन इस फैक्ट की ऑस्कल्टेशन में भी आप कर पाएंगे कि जब आप माइट्रल एरिया पे सुनते हैं आपको क्लिक आ रही है, आप एओर्टिक एरिया पे सुनते हैं आपको क्लिक आ रही है, क्लिक एक ही है. ये चीज़ ऑब्वियसली मतलब आपको सिखाई तो नहीं जा सकती इस तरह इस पे ऑनलाइन. ये तो आपको देखने से पेशेंट्स और सुनने से आएगी कि सिंगल क्लिक में आपको पता चलता है कि क्लिक एक है और एक नॉर्मल साउंड है, और ये इजीली पता चल जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. और जब डीवीआर होता है तो दोनों क्लिक से इकट्ठे आ रहती हैं. इट इज रादर इजी टू आइडेंटिफाई कि नॉर्मल साउंड कौन सी है, क्लिक कौन सी है. तो आप ये देख पाएंगे कि पहले तो यही आप डिटरमिन कर लेंगे कि 2 क्लिक्स आ रही हैं प्रोस्थेटिक की, या 2 मेटालिक क्लिक्स हैं, या एक है. अगर तो 2 मेटालिक क्लिक्स आ रही हैं फिर तो मसले ख़त्म हो गए, डीवीआर है, लाइफ आसान है. आप अपना बाकी एग्जामिनेशन पूरा करें, एग्जामिनर को बताएं कि जी डीवीआर है, और नॉर्मल अब नॉर्मल पे कमेंट करें. विल टॉक अबाउट दैट लेटर एज वेल. और काम आसान है. हाँ, अगर एक आपको मेटालिक साउंड आ रही है और दूसरी नहीं आ रही, तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये डिटरमिन करनी होती है कि क्या ये माइट्रल है और या क्या ये एओर्टिक है. गलत बता के आप बहुत मुश्किल है के पास हों, इसलिए ये चीज़ सही करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया है प्रोस्थेटिक वाल्व है, और उसमें अभी तक जैसे कि हमने डिस्कस किया कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं थी, आपने इंस्पेक्शन पे देखा स्कार है, एक बार से आपको क्लिक की आवाज़ आ गई, तो यू नो प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व होगा मोस्ट लाइकली.
और उसमें फिर ये बताना ज़रूरी होता है कि माइट्रल है या एओर्टिक है। गलत बता के पास होने के चांसेस हाईली बहुत कम है, या तो आपका बहुत एक्सेप्शनल अमेजिंग वाइवा हो जाए तो शायद एग्जामिनर आपको पास कर दे, वरना थोड़ा लेस लाइकली है। तो वाल्व से ही बताना ज़रूरी रहेगा। उसमें ये टिप जो है अगर आप यूज़ करें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और उसको फर्दर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आप माइट्रल एरिया पे सुनेंगे आपको क्लिक सुनाई दे रही है, और अगर आप एओर्टिक एरिया पे सुनेंगे तो भी क्लिक सुनाई दे रही है, तो ये माइट्रल होगा। माइट्रल की क्लिक दूर तक भी सुनाई देती है। एओर्टिक की जो क्लिक है वो सिर्फ एओर्टा व एओर्टिक एरिया पे ही आएगी। एओर्टिक की क्लिक कभी भी माइट्रल एरिया पे नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा टिप और हैक है। आप इसको जब आप पेशेंट्स देखेंगे तो इसको यूटिलाइज करें, एंड इससे अगर आपका एग्जाम में स्टेशन कोई सही होता है तो दैट वुड बी वंडरफुल। सो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो लेट्स मूव ऑन। तो अब नाउ दैट आप बता चुके हैं कि पेशेंट को प्रोस्थेटिक माइट्रल वाल्व रिप्लेस हुआ है या एओर्टिक रिप्लेस है या डीवीआर है, और नॉर्मली फंक्शनिंग ही रखते हैं मोस्ट लाइकली। अब नॉर्मल पेशेंट्स जनरली नहीं लेके आते, लेकिन ऑब्वियसली शुड बी रेडी फॉर दैट बताने के लिए। सो नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट 3.5 मिनट्स हैं विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम, जिसके अंदर आपसे थ्योरी डिस्कस की जाएगी, और उसमें जो आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आई हैव ब्रॉट दोज एंड उनके स्पेसिफिक शॉर्ट आंसर्स। सो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी वाल्व्स की टाइप्स क्या होती हैं, जो आपका पेशेंट है इसमें क्या वाल्व डालेंगे, अगर एक यंग फीमेल है जो कि प्रेगनेंसी अभी चाहती है उसमें क्या वाल्व डालेंगे, डिफरेंट वाल्व्स की डिजायर्ड आईएनआर लेवल्स क्या हैं। मेरे से ये 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे अपने एग्जाम में, दैट्स इट। वरना इसके अलावा और क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रोस्थेटिक वाल्व मैल फंक्शन के ऊपर, स्टेनोसिस एंड रीगर्जिटेशन, एंड इसी के साथ पेशेंट प्रोस्थेटिक मिसमैच पे शायद कोई एग्जामिनर पूछ सकता है, या प्रोस्थेटिक वाल्व्स को प्रेगनेंसी में कैसे लेके चलना है। ये एक कॉमन थीम हो सकती है क्वेश्चंस की। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस आई थॉट ऑफ या आई हैव ऑब्जर्व्ड के एग्जामिनर्स ने पूछे हैं या पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। अगर कोई और क्वेश्चन किसी के ज़हन में है तो वी कैन डिस्कस एट द एंड ऑफ द सेशन। सो लेट्स मूव के इनके आंसर्स क्या हैं। So we prosthetic valves के अंदर we have obviously tissue valves and mechanical valves. टिश्यू वाल्व्स में हमारे पास ह्यूमन से लिए जा सकते हैं, जिसमें अपने वाल्व्स ले सकते हैं, जैसे कि उसकी एग्जांपल रॉस प्रोसीजर है, पल्मोनरी वाल्व लेके हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऑल्दो नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। फिर एलोग्राफ्ट्स हैं किसी और ह्यूमन से ले सकते हैं, या फिर एनिमल से जनरली जो हम टिश्यू वाल्व्स लेते हैं पोर्साइन या बोवाइन वाल्व्स लेते हैं, तो ये टिश्यू वाल्व्स आपके होते हैं। और या फिर मैकेनिकल वाल्व्स हो सकते हैं। टिश्यू वाल्व्स तो हमने डिस्कस कर लिए। मैकेनिकल वाल्व्स में रिसेंटली बहुत अरसे से बॉल एंड केज यूज़ नहीं होता, बट आपको पता होना मस्ट है। इट्स वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वाल्व्स इन द ओल्डर टाइम्स। इट वाज अ वेरी गुड फंक्शनिंग वाल्व। इसका मसला ये था कि इट्स ह्यूज स्ट्रक्चर है इसका, इट कॉज्ड हिमोलिसिस और इसके ग्रेडियंट्स थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन जो इसका लाइफ स्पैन है वो अमेजिंग था। इसकी ड्यूरेबिलिटी स्टिल सबसे बेस्ट है, बट बिकॉज ऑफ इट्स अदर हीमोडायनामिक प्रॉब्लम्स इट्स नॉट यूज्ड एनी मोर। कोई बहुत पुराना पेशेंट आप देखेंगे वाल्व रिप्लेस हुआ तो बॉल एंड केज मिल सकता है। बॉल एंड केज चलेंगे मैं थोड़ी देर में भी डिस्कस करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वाल्व्स आए थे वो टिल्टिंग डिस्क वाल्व थे, जिसमें मेट्रॉनिक हॉल और जॉर्ज शाइली के वाल्व्स कॉमनली यूज हुए थे। एंड अब जो ऑलमोस्ट रूटीनली हर जगह वाल्व्स यूज होते हैं वो बाई लीफलेट टिल्टिंग डिस्क हैं, क्योंकि इनकी हीमोडायनामिक्स बेस्ट हैं। सेंट जूड्स के यूजुअली यूज़ हो रहे हैं एटलीस्ट पाकिस्तान में, कार्बोमेडिक्स के हो रहे हैं, एंड नए वाल्व्स आए हैं ऑन एक्स वाल्व्स। आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ देम। जो रिसेंट अपडेट हुई हैं गाइडलाइंस उनके अंदर ऑन एक्स वाल्व्स के बारे में जो है वो भी जिक्र है। दीज आर वन ऑफ द कंपनीज यूनिक वाल्व्स जिनके अंदर जिनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें आपको रिलेटिवली लेस एंटीकोगुलेशन चाहिए। तो जस्ट अ ब्रीफ थोड़ा बहुत अगर ऑन एक्स वाल्व के बारे में आपको पता हो दैट वुड बी आल्सो वंडरफुल। बॉल इन, हाँ बिफोर वी मूव ऑन, हम यूजुअली जो क्लिक सुनते हैं दैट इज द क्लोजिंग क्लिक। ओपनिंग क्लिक इतनी कोई लाउड होती नहीं है और मतलब ऑलमोस्ट अनअप्रिशिएबल है बाय अनएडेड, मतलब हमारी स्टेथोस्कोप के साथ। सो विल बेसिकली बी फोकसिंग ऑन द क्लोजिंग क्लिक्स ऑफ दीज वाल्व्स। बॉल एंड केज के लिए इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना जरूरी है कि बॉल एंड केज की जो ओपनिंग क्लिक है दैट इज ऑल्सो
very audible. So you hear a more audible opening click and then a closing click as well. So that is one difference you must remember as far as ball and cage valves are concerned. इसके अलावा मेनली आपसे डिस्कशन जो है वो बायलीफलेट टिल्टिंग डिस्क की ही होगी. So ball and cage is a durable valve. It's a high profile है और you don't need to know much about it. Just the fact कि इसकी opening click जो है that is the more louder one. Tilting disc है जिसमें एक disc होती है, tilts and allows the blood flow, and obviously फिर जब वो बंद हो जाता है तो it stops the rest regurgitation. And similarly जो अब use होती हैं, जो most commonly used हैं और best hemodynamics हैं, वो bileaflet tilting disc valves हैं. And this is an example of a heterograph जो आपका tissue valve है. Porcine या bovine होते हैं और they are also almost as frequently used as mechanical. Mechanical शायद ज़्यादा हैं, bioprosthetic, but are also frequently used. So for the rest of the questions, I've used the 2017's updated guidelines over the 2014's last major guidelines. So we'll be answering all the questions via the guidelines because हर question का best answer is that is given via the guidelines. तो आपका जो अगला question था कि which valve will be given to this patient. अब ये question almost हर बंदे से पूछा जाएगा whoever get a prosthetic valve का short case कि how will you decide कि कौन सा valve बेस्ट रहेगा इस पेशेंट के लिए. सो द गाइडलाइंस से कि नंबर वन चीज़ ये कि इट्स अ शेयर्ड डिसीजन. अगर एक पेशेंट आपको स्पेसिफिकली कहता है एज इरिस्पेक्टिव कि जी मैं या कोई ऐसा बंदा है हु इज़ नॉट वेरी एजुकेटेड या फॉर द फैक्ट कि ही इज़ एजुकेटेड, वो कहता है कि जी मैंने एंटीकोगुलेशन नहीं लेनी, मेरा लाइफस्टाइल बहुत रिस्की है, जैसे भी है, anticoagulation is not an option for me. Age irrelevant, you will give him a bioprosthetic valve. So the most important thing is that it's a shared decision making process. That's your class 1 recommendation. कि valve choose करने से पहले, बाकी चीज़ें देखने से पहले आपका patient से बात करना बहुत ज़रूरी है. You have to explain the risks and the benefits of both the valves and then ask him what he's comfortable with, not what you're comfortable with. So it's a shared decision making process. और अगर आपसे फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है कि जी आप मुझे सजेस्ट करें कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, तो देन उसके लिए आपके पास कुछ जो हैं वो इंडिकेशंस हैं कि एनी पर्सन हु इज़ लेस देन 50 ईयर्स उसके लिए मैकेनिकल प्रोस्थेसिस जो है दैट इज़ प्रेफरेबल, दैट्स अ क्लास 2 इंडिकेशन. एंड सिमिलरली जो बंदा 70 ईयर्स से ज़्यादा है उसके लिए बायोप्रोस्थेटिक वाल्व बेहतर रहेगा. अ लॉट ऑफ पीपल, एक तो खैर रीज़न एक्चुअली ये वैलिड भी है कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व जो है वो बेहतर रहेगा बिकॉज एज वी ऑल नो कि उसकी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट अराउंड 10 ईयर्स है. तो एनी पर्सन हु वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनका लाइफ स्पैन मोर देन 10 ईयर्स है तो मैकेनिकल वाल्व प्रेफरेबल रहता है बिकॉज ऑन एन एवरेज बायोप्रोस्थेटिक वाल्व की लाइफ 10 ईयर्स होती है. बट ओल्डर एज में बायोप्रोस्थेटिक वाल्व डालने का एक बहुत और इम्पॉर्टेंट रीज़न भी ये है कि ओल्डर एज में वेयर एंड टेयर बायोप्रोस्थेटिक वाल्व्स का कम होता है एंड इनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है. सिमिलरली यंगर एज के अंदर जो है वो मैकेनिकल वाल्व्स जो हैं वो प्रेफरेबल इसलिए रहते हैं बिकॉज बायोप्रोस्थेटिक वाल्व्स की वेयर एंड टेयर ज़्यादा है एंड मैकेनिकल की ऑब्वियसली देयर एसेंशियली लाइफ अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो. Now the problem remains between के 50 and 70 years में क्या है. तो 50 and 70 में जो है it's a grey zone. The guidelines have left an unclear note to you कि आप उसमें risk and benefit ratio देखें, patients के बाकी risk factor देखें, life expectancy देखें, उसकी activity देखें and फिर उसके ऊपर जो है वो एक shared decision ले लें. So either will be fine. But less than 50 mechanical is the way to go and more than 70 bioprosthetic is the way to go. थोड़ी एडेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी बट वैसे ही साथ जिक्र करता जाता हूँ कि यूरोपियन गाइडलाइंस जो हैं वो थोड़ी सी एज में डिफरेंट हैं. उनका एज क्राइटेरिया इतना नहीं है. दे हैव दिस, उनका 60 एंड 65 है. 60 के नीचे मैकेनिकल डालें और 65 के ऊपर ये बायोप्रोस्थेटिक डालें. एंड फॉर द एंड एक वाल्व की 60 एंड 65 है, टेक की आई थिंक 70 to 75 है, इस तरह से. सो उनका एज कट ऑफ डिफरेंट है.
वैसे ही अगर जेन में रह गया आपसे कोई पूछ ले, वरना जनरली वैसे AHA की गाइडलाइंस ही प्रेफर की जाती हैं, जनरली एग्जामिनर्स वही पूछते हैं, बट जस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट आपका, सो once we've answered that, similarly जो है वो again आपकी जो pregnant patients हैं या सॉरी जो young females हैं who would like to still be pregnant, उनके लिए bioprosthetic valve is a very attractive option. Again it will be a shared decision. आप patient को दोनों चीज़ें explain करेंगे कि bioprosthetic valve के साथ ये है कि obviously you might need a reoperation somewhere down the line, and mechanical के साथ सिर्फ there will be a problem of added anticoagulation. So bioprosthetic can be offered to a younger patient, a younger female specifically, against the guidelines if she is planning for further pregnancies. तो ये एक further चीज़ है जो कि आप अगर examiner को बता देंगे तो they'll be pleased to know कि you know this as well. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ कि आपने हर वाल्व के लिए एक टारगेट INRs क्या रखने हैं। प्रीवियसली इससे पिछली गाइडलाइंस में शायद आपने कहीं पहले पढ़ा भी हो या जैसे भी हो, पहले रेंज दी जाती थी कि माइट्रल वाल्व के लिए आपने 2.5 से 3.5 रखना है, टेक के लिए आपने 2 to 3 रखना है। दैट इज चेंज नाउ, अब उन्होंने स्पेसिफिक एक वैल्यू दे दी है। इसका रैशनल ये है कि वो कहते थे कि जब हम एक जोन दे देते हैं, तो अगर किसी को जोन 2.5 से 3.5 की दिया तो आइडियली ऑब्वियसली वो वुड लाइक कि वो 3 के आसपास रखें, बट पेशेंट्स क्या करते थे कि फिर 2.5 के पास रहना शुरू कर देते थे या 3.5 के पास रहना शुरू कर देते थे, तो इट वाजंट रियली एन आइडियल सिनेरियो। सो अब इसलिए INR वैल्यूज हैव बीन फिक्स्ड। इनके 0.5 ऊपर नीचे की अलाउंस है, बट आइडियली वी वुड लाइक कि आवर पेशेंट्स टू हैव दिस स्पेसिफिक INR फॉर दिस स्पेसिफिक वैल्व। तो ये आपको याद करना है। एनी पेशेंट हु हैज़ अ मैकेनिकल AVR एंड फर्दर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के, जैसे कि कोई पुराना वाल्व नहीं है, बॉल एंड केज नहीं है, कोई अदर रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो उनका INR 2.5 है। फॉर मैकेनिकल AVR एंड एडिशनल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि फिब्रिलेशन चल रही है या पहले थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, LV डिस्फंक्शन है या कोई और हाइपरकोगुलेबल स्टेट है या कोई ओल्डर जनरेशन का बॉल एंड केज वाल्व डला हुआ है, तो फिर उनके लिए इवन एओर्टिक वाल्व के लिए INR 3 रहेगा। सो लो रिस्क AVR के लिए INR 2.5 है, हाई रिस्क AVR के लिए 3 है, और MVR के लिए तो वैसे ही 3 है। अब ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो सकता है कि माइट्रल के लिए INR हाई क्यों रखना है और एओर्टिक के लिए कम क्यों रखना है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ बता देता हूँ कि एओर्टिक वाल्व पे क्योंकि टर्बुलेंस नेचुरली ज़्यादा है तो क्लॉट बनने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए थोड़ा कम INR भी चलता है। माइट्रल पे क्योंकि फ्लो स्लो है, क्लॉट्स बन सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हाई INR चाहिए होता है। इसके बाद जो है सिमिलरली आपने इन पेशेंट्स को वारफरिन के साथ साथ एस्पिरिन भी देनी है। सो एस्पिरिन इन एडिशन टू एंटीकोगुलेशन आपने देनी है एनी पेशेंट हु हैज़ अ मैकेनिकल वाल्व। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जनरली हम देखते हैं कि हम एस्पिरिन दे रहे हैं या वारफरिन दे रहे हैं, इन पेशेंट्स को हमने वारफरिन प्लस एस्पिरिन देनी है। एंड सिमिलरली चाहे मैकेनिकल वाल्व है या बायोप्रोस्थेटिक वाल्व है, एस्पिरिन हमने दोनों पेशेंट्स को देनी है। जो मैकेनिकल वाल्व्स हैं उनमें एंटीकोगुलेशन लाइफ लॉन्ग रहेगी, लेकिन जो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व्स हैं उनमें हमने एंटीकोगुलेशन 3 months to 6 months के लिए देनी है, और उसके बाद नो एंटीकोगुलेशन। यही बायोप्रोस्थेटिक का एज है कि उसको एंटीकोगुलेशन की फर्दर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 to 6 months देनी है, और देन ओनली एस्पिरिन कैन कंटिन्यू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि आपसे शॉर्ट इसके अंदर पूछा जाएगा, इतना टाइम नहीं है और इस क्वेश्चन की शायद इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है। मे बी इफ समबडी गेट्स अ लॉन्ग केस या जस्ट बिकॉज इट्स देयर, तो एटलीस्ट आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि एंटीकोगुलेशन जो है इसको हमने बंद कब करना है। ए पेशेंट प्रोस्थेटिक वाल्व का है, उसकी हमने एंटीकोगुलेशन रोकनी कब है। ऑब्वियसली एक बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन है, आपसे रियल लाइफ में तो बहुत सारे पेशेंट्स ये ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रहे होंगे एंड यू मस्ट बी नोइंग द आंसर्स। और सिमिलरली एग्जाम में शॉर्ट केस में तो आई डोंट थिंक पूछा जाएगा, बट मे बी लॉन्ग केस। सो आप जो भी माइनर प्रोसीजर्स हैं सच एज डेंटल एक्सट्रैक्शन या कैटरैक्ट रिमूवल वगैरह के लिए जहाँ पे ब्लीडिंग इजीली कंट्रोल हो सकती है, कंप्रेसिबल है, वहाँ पे आपने बंद नहीं करनी,
बिकॉज वाल्व बंद होने का सबसे ज़्यादा रिस्क है, तो हम एंटीकोगुलेशन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर पेशेंट्स जो हैं उनके इन्वेसिव प्रोसीजर्स होने हैं, कोई सर्जरी होनी है, तो उसमें फिर टेम्पररी हम इंटरप्शन कर सकते हैं। अब जब टेम्पररी इंटरप्शन करेंगे तो फिर एक और फर्दर सवाल आता है कि क्या कंप्लीटली बंद कर दें या कुछ फिर भी इसको दे दें। तो अगर तो पेशेंट का मैकेनिकल एवीआर है और लो रिस्क एवीआर जो हमने कंसिडर किया था, जिसके लिए आईएनआर ऑलरेडी कम था, उसमें कोई ब्रिजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बंद कर दें। वी आर ऑलरेडी सस्पेक्टिंग कि एवीआर लो रिस्क है, तो वहाँ पे टर्बुलेंस ऑलरेडी ज़्यादा होती है, इंशाल्लाह नहीं क्लॉट बनेगा, तो उसको फर्दर आप कोई ब्रिज ना करें। लेकिन अगर पेशेंट्स का हाई रिस्क एवीआर है, जैसे कि उनमें पैलिएटिव फिब्रिलेशन चल रही है, एलवी पुअर है, कोई फर्दर कोगुलोपैथीज चल रही हैं, आपको रिस्क है कि इसको क्लॉट बन सकता है, या फिर कोई पुराना एवीआर डला हुआ है, जैसे कि हमने कहा कि वो फर्दर एक रिस्क फैक्टर है कोगुलेशन का, या फिर एमबीआर है, इन पेशेंट्स में आपने ब्रिजिंग एंटीकोगुलेशन करनी है। जैसे कि आप वारफिन बंद करेंगे, साथ ही हेपरिन चला दें, और जब सर्जरी होती है तो उससे आप आधा पौना घंटा, घंटा 2 घंटे पहले हेपरिन बंद कर दें, सर्जरी कराएं, जब हीमोस्टेसिस अचीव हो जाए दोबारा से हेपरिन, एंड देन फिर अगेन वारफिन स्टार्ट कर दें, ताकि उन पेशेंट्स को आप एज लेस एज पॉसिबल जो है वो क्लॉटिंग के लिए एक विंडो दें। हाँ, अगेन अगर लो रिस्क एवीआर है तो उसमें आपको ब्रिजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उन पेशेंट्स में चांसेस कम है, यू कैन टेक दैट रिस्क। सिमिलरली जो है, अगर पेशेंट्स का कोई इमरजेंसी प्रोसीजर होने से परफोरेटेड गट हो गई है, आपको करना ही करना है, तो उन पेशेंट्स को आप एफएफपीज या प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं और उनका आईएनआर रिवर्स कर सकते हैं, सर्जरी करके रिज्यूम कर लें। और अगर पेशेंट का कोई अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो गई है, आईएनआर बहुत ऊपर चला गया है और कोई हाई रिस्क ब्लीड हो गई, तो उसमें भी फिर एफएफपीज और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट हम दे सकते हैं। This is a brief summary of what we've discussed so far. कि पेशेंट का अगर MBR आपने किया है तो आपका INR का गोल 3 है, प्लस एस्पिरिन देनी है। अगर AVR विद रिस्क फैक्टर्स हैं तो अगेन INR 3 है और एस्पिरिन साथ देनी। लो रिस्क AVR है तो INR का गोल 2.5। एंड सिमिलरली बायोप्रोस्थेटिक वाल्व्स के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स तक जो है वो वार्फिन देनी है, वरना साथ एस्पिरिन चलेगी लॉन्ग टर्म में। So that's it. ठीक है, so that now concludes our second and third question के patients या different patients के different valves के हमने target INRs क्या रखने हैं। 2 मिनट की ब्रीदर दे दूं या कंटिन्यू करता रहूं डॉक्टर सीप? As you feel comfortable. I will try to just get all the questions from the participants. मैं तो 2 घंटे भी लेक्चर देता जाऊंगा। इट्स एक्चुअली जिन्होंने जो सुन रहे हैं एंड जो मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी ये कहना है, लेट अस डाइव इनटू द क्वेश्चन। मेरे ख्याल बहुत सारी बातें जो है ना वो क्वेश्चंस के जवाब में कवर हो जाएंगी। I think at this point let's take some questions ताकि सबके माइंड भी जरा रिफ्रेश हो जाए, and then let's continue after about 3-4 minutes. हाँ, तो अभी तक जो डिस्कशन हुई है हमारी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ। Sure, So our because first we're reaching the 1 hour mark, so I think let's take 3-4 minutes. So the question is okay, very ये प्रैक्टिकल बात की इन्होंने। You are saying without apex speed do not proceed further. In 10 to 20% population it can be absent, and then even not find it on the right side, what to do? मतलब ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, हमें मिल ही नहीं रही। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक तो पहली बात ये है कि ऑब्वियसली एग्जाम में हम कोशिश करते हैं कि एज क्लासिकल केसेस लेके आएँ एज पॉसिबल। सेकंड, ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे कंटिन्यू ना करें। आई एम जस्ट सेइंग कि एपेक्स स्पीड इज योर बेस्ट फ्रेंड। स्पेंड 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स इफ यू वांट, जस्ट मेक श्योर कि मिलती है तो निकाल के रहें, नहीं मिलती तो ऑब्वियसली मतलब फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। यू विल बी इन अ मेस अगर आपको एपेक्स स्पीड नहीं मिली। बहुत दफ़ा लैक ऑफ एफर्ट की वजह से भी नहीं मिलती। लेट मी टेल यू, हम पेशेंट को लेफ्ट लैटरल नहीं कराते, राइट साइड पे भी नहीं देखते, एफर्ट नहीं करते एपेक्स स्पीड पे। आई जस्ट वांट टू emphasize the fact कि apex beat पे effort करें। Obviously अगर नहीं मिली तो नहीं मिली। Obviously if you will be very unlucky अगर आप उस 10% population में से हैं कि अगर आपको ऐसा पेशेंट आ गया है कि
उसकी एपेक्स बीट नहीं मिल रही, बिकॉज एपेक्स बीट की इंफॉर्मेशन शॉर्ट केस का डायग्नोसिस बनाना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। एंड आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं। व्हेन द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी शॉर्ट केसेस, ट्राई टू, एक बंदे को कहें कि आप एपेक्स बीट देख के ऑस्कल्टेट करें एंड आप ऑस्कल्टेट डायरेक्टली करें एंड सी के कितने पेशेंट्स आप सही डायग्नोज कर पाते हैं, जो 7 एपेक्स बीट देख के कर रहा है वो कितने कर पाता है। सो इट्स जस्ट अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आप ज़रूर इसको करके देखिएगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ, ये 2-3 क्वेश्चन है लेकिन इनका थीम सेम है। फीमेल पेशेंट्स के अंदर एक्सपोजर का प्रॉब्लम होता है, पेशेंट में प्रॉब्लम आती है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, कोई भी अब इसमें एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हो सकता है। आप का नंबर 1 ऑब्वियसली, अगर आपको एक्सपोजर फॉर एग्जांपल डिनाई हो गया है तो दिस इज़ अगेन सो डिसएडवांटेज टू यू। आप किसी भी फॉर एग्जांपल कोई भी इंग्लिश एग्जाम देते हैं या कहीं भी देते हैं तो यू विल बी अलाउड द एक्सपोजर एंड पेशेंट्स विल बी एक्सपोज्ड ऑलरेडी बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव दिस डिसएडवांटेज टू यू। बट ऑब्वियसली हमारे सोशल सर्कमस्टांसिस की वजह से दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू लिव विद। आप एग्जामिनर को ऑब्वियसली ये मतलब I'd like to tell you कि आप ये लाइन कहें क्या, सर आइडियली आई वुड लाइक to have a complete exposure, but because of social circumstances I'm going to proceed with। देखें, एक्सपोजर आपको ईदर वेज मिलना तो है नहीं। एक फीमेल पेशेंट है, आपके सामने एक्सपोज तो नहीं करेंगे, और अगर एक्सपोज कराना शुरू करेंगे उस वक्त तो टाइम ज़ाया होगा। अगर कोई एग्जाम आप किसी को कहते हैं कि सर आइडियली आई वुड लाइक टू, या सर कैन आई एक्सपोज द पेशेंट, और अगर आपको एग्जामिनर कह देता है कि जी डू एज यू प्रोसीड, ये भी हुआ है। एक कैंडिडेट कहता है कि सर आई वांट टू एक्सपोज द पेशेंट एंड एग्जामिनर कहता है डॉक्टर साहब डू एज यू लाइक। आप एक बहुत स्टिकी मैस में फंस सकते हैं। अब आप एक्सपोज कराएंगे या कराने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली फीमेल मना ही मोस्ट लाइकली कर देगी, और नहीं कराएंगे या नहीं कर पाएंगे तो अगेन एग्जामिनर के सामने एक बुरा सा इमेज बन जाएगा। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड कि फीमेल्स को एक्सपोज नहीं करना, कोई भी इस चीज़ पे आपके नंबर नहीं काटता। हाँ, अगर आप कहते नहीं है तो शायद काट सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि उसमें जो आइडियल लाइन आपने कहनी वो यही है कि सर आइडियली आई वुड लाइक टू एक्सपोज द पेशेंट फॉर इंस्पेक्शन, बट सिंस because of social restraints and circumstances I'm going to proceed without it। so just say I'm going to proceed without it because of this limitation। ओके, ये एग्जामिनर को नेक्स्ट, चांस ना दें कि वो आपको ये कह दे कि जी बेटा मर्जी है, जैसे करना है वैसे कर लो। ओके ओके, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ले लूँ, आपके होने का श्योर जो है ना भरपूर फायदा उठाया जाए। श्योर। सो पेशेंट है, फर्स्ट किया एक पेशेंट है, शॉर्ट केस है, और उसके अंदर ARP है, उसके अंदर ASP है, और उसके अंदर MS भी है। 3 यानी कि फाइंडिंग्स है उसके अंदर। ठीक है। क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि जी एक कैंडिडेट आता है और वो सिर्फ एओर्टिक वॉल्व की रीजन्स को पिक कर पाता है और MS को मिस कर गया, और एक और आता है वो तीनों पिक करके चला गया। इन दोनों के फाइंडिंग्स बताने में एग्जामिनर पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, उसकी वो हिंट भी दे रहे हैं साथ जो क्वेश्चन कर रहे हैं, कि हमें ये भी टेंशन रहती है कि एग्जामिनर कहीं ये ना सोचे कि ये तो केस देख कर आए हुए हैं इसलिए इसने हर बात पिक कर ली, तो नेगेटिव बिल्कुल इफेक्ट ना पड़ जाए। बिल्कुल ठीक है। नंबर 1, आपने एक तो पहली बात है कि इन कंपेरेबल सिचुएशंस नहीं है, हर बंदे का एग्ज़ाम फ़र्क होता है, वो उसका अपना टाइम है विद एन एग्जामिनर। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि एक बंदे ने सब बोला और दूसरे ने नहीं बोला तो इनका आपस में क्या होगा। नंबर 1। सेकेंडली जो है, आप आई वुड वेरी स्ट्रांगली अर्ज यू कि आप केसेस ना देखें। आप जो केसेस देख के आएंगे उसमें आप बहुत बायस हो जाते हैं। एग्जामिनर आके शॉर्ट केसेस खुद एग्जामिन करते हैं, अपनी एक फाइंडिंग्स का एक अलहदा कंसेंसस बनाते हैं एंड दे नो। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ कि वंस वी हैड अ केस ऑफ PS एंड अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स said कि ये AS हैं and they passed, and some said कि ये PS and they failed। केस देखने से आप कभी कभी बहुत बायस हो जाते हैं, आप सुनने वाली फाइंडिंग्स नहीं ध्यान दे रहे होते। कभी कभी केसेस डिफरेंटली प्रेजेंट करते हैं, इतने क्लासिकल नहीं होते। जो सुनाई दे रहा है उस पर ट्रस्ट करें, केसेस मत देखें। आई कैंट मतलब अर्ज दिस इनफ। ओके ओके, अपनी बिल्कुल ठीक। बेसिक्स पे ट्रस्ट करें। सेकेंडली जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें ये है कि अगर पेशेंट के मल्टीपल लीजन्स हैं, अगर आप कोई मिस करते हैं, ये चीज़
इसको जेन में बिठा लें, एग्जामिनर हमेशा आपको चांस देगा। अगर दो भी लीजन्स है ना, फॉर एग्जांपल AS और AR भी है, आपने एक बता दिया, 3-4 तो छोड़ें, वो तो ऑब्वियसली उसमें तो एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है, दो भी हैं, आपने एक बता दी, एग्जामिनर हमेशा आपको चांस देगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को एक चीज़, ऑब्वियसली जब डिफरेंट लीजन एक आ जाता है ना, तो उसकी वजह से फाइंडिंग भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को AR है, साथ उसको MS है, और उसकी एपेक्स ब्लीड इतनी डिस्प्लेस्ड नहीं है। MS की ऑब्वियसली देखें डायस्टोलिक मर्मर है, आपको लगा ये सारा ही मर्मर AR का है, आपने MS पिक नहीं किया, आपने फर्स्ट हार्ट साउंड पे इतना ध्यान नहीं दिया। एग्जामिनर हमेशा आपसे अगला क्वेश्चन करेगा कि बेटा इसकी एपेक्स ब्लीड इतनी डिस्प्लेस्ड क्यों नहीं है। अगर आप तब भी कह देते हैं कि सर इसमें MS हो सकता है, मे बी मुझे मर्मर सुनाई ना दिया हो या मैं उससे कंफ्यूज हो गया हूँ, अच्छा तो इसकी फर्स्ट हार्ट साउंड कैसी है, सर वो लाउड है, हाँ तो फिर क्या फाइनल डायग्नोसिस है, सर MS और AR, तो यहाँ आप पास हैं। अगर एग्जामिनर आपको हिंट पे हिंट देता चला जा रहा है और आप उसको नहीं ले रहे और आप थ्योरेटिकली वीक साबित कर रहे हैं अपने आप को, तो वहां फिर मुश्किल हो जाएगा। जो भी आप ये याद रखें, जो भी आप लीजन एक्चुअल डायग्नोसिस से मिस करेंगे ना, एग्जामिनर उसका हिंट आपको देगा। वाइवे में उस हिंट को इंटेलिजेंटली पिक करें, अपनी फाइंडिंग में मिलाएं और देखें कि जो एग्जामिनर कह रहा है ये बात मेरे डायग्नोसिस में क्या फिट होती है। जब भी एक मेरी बात याद रखें, जब भी कोई चीज़ एड अप नहीं हो रही ना, दैट मीन्स कि कोई चीज़ मिसिंग है, और इट्स ओके कि आप एग्जाम में चीज़ मिस किए बैठे हैं। बस जब एग्जामिनर हिंट दे, उस मिसिंग क्लू को अपने पजल में फिट करें और देखें कि क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं। एंड एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्वियसली एग्जाम का स्ट्रेस होता है, माइंड ब्लॉक हो जाता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि AR है, एपेक्स बीट क्यों नहीं डिस्प्लेस हो रही। आप एग्जामिनर को अपनी क्वेरी अगर बता देंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा है। अगर आपसे कोई डायग्नोसिस पूरा नहीं ना बन रहा, बजाय कि उस फाइंडिंग को गायब करके कुक कर दें, आप एग्जामिनर को अपनी कंफ्यूजन बता दें कि सर डायग्नोसिस आई थिंक AR है, लेकिन इसमें ये चीज़ फिट नहीं होती, और वो बात आपकी ठीक होगी, क्योंकि देखें जो फाइंडिंग्स आप देख रहे हैं वो तो असल में ही है ना। अगर एपेक्स बीट नहीं डिस्प्लेस तो नहीं डिस्प्लेस, इसमें आपकी और एग्जामिनर की फाइंडिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं हो सकता ना। अगर नहीं डिस्प्लेस तो नहीं डिस्प्लेस, आपको भी फील हो रही है, एग्जामिनर को भी पता है भाई नहीं डिस्प्लेस, लेकिन एग्जामिनर को पता है वजह क्या है, आपको उस वक्त वजह जेन में नहीं आ रही, तो अपनी फाइंडिंग कुक ना करें, एपेक्स बीट को जबरदस्ती डिस्प्लेस ना करें। एग्जामिनर को कहेंगे सर डायग्नोसिस AR है, एपेक्स बीट डिस्प्लेस नहीं है, समझ नहीं आ रही क्यों नहीं, तो वो फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा क्या रीजंस हो सकते हैं। आप कहेंगे कि सर साथ AS हो सकता है, साथ MS हो सकता है, ये वजह हो सकती है। या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पेशेंट को MR है और फर्स्ट हार्ट साउंड सॉफ्ट नहीं है, तो सर आप कहेंगे कि सर, वो आपसे पूछेगा कि बेटा आप कह रहे हैं MR है और साथ आपने कहा है कि फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल है, उसको कुक ना करें, फर्स्ट हार्ट साउंड को ज़बरदस्ती कुक करके सॉफ्ट ना करें। आपसे एग्जामिनर कहेगा कि अच्छा क्या वजह हो सकती है, मे बी तब आपका दिमाग चल पड़ा, कहें सर MS हो सकता है, मे बी MVP हो, साथ मे बी टेकिकार्डिया हो। अच्छा अगर MVP होगा तो फिर क्या होगा, अब आपका जेन चलना शुरू हो जाना चाहिए कि इसको प्रोबेबली MVP ही है। आप कहेंगे सर उसमें वो एजेक्शन क्लिक हो सकती है, एक मिड सिस्टोलिक क्लिक हो सकती है, और ज़रा लेट सिस्टोलिक मर्मर होता है, जब पूरा MR हो जाए फिर। अच्छा तो इसमें लग नहीं रहा ऐसा है, तो अब आप देखें, अब एग्जामिनर आपको लाना चाह रहे हैं MVP पे, अगर आपने MVP पिक नहीं किया, आपने उसको MR बनाया हुआ, तो इट्स ओके, इट्स एक्चुअली गुड कि आप, इट्स मेक श्योर कि आपको एग्जाम का पता नहीं था और आपको एग्जामिनर ने हिंट दिया, आपने वो हिंट लिया और आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये याद रखिएगा, जब भी जो चीज़ आप मिस किए होंगे ना, एग्जामिनर आपको हिंट्स देगा, वो हिंट अगले सवाल में उसके होगा, वो लेना है। अगर वो कोई ऐसी बात ना करे, वो आगे चल पड़े, इसका मतलब है डायग्नोसिस ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर वापस प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये कमेंट करना है कि वॉल्यूम ऑफ द पल्स के ऊपर कमेंट करना है कि ये लो वॉल्यूम है वॉल्यूम, तो वो रेडियल आर्टरी पे थंब रख के करना है या कैरोटिड पे थंब रख के फिर कमेंट करना है? पहली बात है, मैं फिर इसको स्ट्रेस करूंगा, रेडियल की जान छोड़ दें, रेडियल का सवाई एट्रियल फिब्रिलेशन के कोई ताल्लुक नहीं है। बस आपने सिर्फ और सिर्फ, या खैर पेरिफेरल पल्सेस देखने में, लेकिन उसका एज सच इतनी कोई क्लिनिकल इम्प्लीकेशन होती नहीं है। आपने वॉल्यूम पे कमेंट, आपने कैरेक्टर पे कमेंट, हर चीज़ आपने करोटेड पे करनी है, और आपने हाथ करोटेड भी रखना है, रेडियल पे हाथ ले जाना छोड़ दें, आपने रेडियल देखनी नहीं, आपके पास सिर्फ करोटेड ही है।
ग्रेट हो गया। डॉक्टर गुलजमान हमारे साथ हैं, saying great lecture Noor as always. Kindly update for the basic echo parameters for prosthetic valves evaluation. ये आप बाद जी में बता दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा हाँ बेशक, जी, मैं जैसे इसमें आपको यही कहने कम्फर्टेबल लगा था समझे। कि डॉक्टर गुलजमान के साथ के लिए एक एडवांस्ड सेशन अलहदा करेंगे। एको पैरामीटर्स इस टॉक के लिए डेफिनेटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये है कि लेट्स कंटिन्यू। नाउ वी मूविंग ऑन टू द प्रोस्थेटिक वाल्व्स की प्रॉब्लम्स जो हैं, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो थ्रोम्बोसिस हो सकती है या रीगर्जिटेशन हो सकती है। इसमें एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोस्थेटिक वाल्व्स इनेटली थोड़े से स्टेनोटिक होते हैं। जब भी आप प्रोस्थेटिक वाल्व फॉर एग्जांपल सुनते हैं, आपको एक मेटालिक क्लिक सुनाई दे रही है, मे बी वहाँ पे आपको एक शॉर्ट सा सिस्टोलिक मर्मर भी सुनाई दे रहा हो, वो एबनॉर्मल नहीं है। शॉर्ट सिस्टोलिक मर्मर्स प्रोस्थेटिक वाल्व्स के साथ नॉर्मल हो सकते हैं बिकॉज दे आर इनहेरेंटली थोड़ा सा स्टेनोटिक। तो बड़ा एक शॉर्ट सा सिस्टोलिक मर्मर हो सकता है, उसको एबनॉर्मेलिटी में काउंट नहीं करना आपने, ठीक है। जो रीगर्जिटेशंस हैं, रीगर्जिटेशंस जो हैं वो हमेशा एबनॉर्मल है। जहाँ पे भी आपको अगर माइटल वाल्व पे एमआर मिल रहा है, अगर एओर्टिक वाल्व पे एआर मिल रहा है, तो जो रीगर्जिटेंट लीजन्स हैं वो हमेशा एबनॉर्मल रहेंगे। शॉर्ट स्टेनोटिक मर्मर्स जो हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। एंड इसी के साथ जस्ट बेसिक आपको बताता चलूँ कि माइट्रल वाल्व पे ऑन एन एवरेज 5 मिलीमीटर्स मर्करी का एक मीन ग्रेडियंट होता है, तो एरोटिक पे तकरीबन 10 का नॉर्मल होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एको करते हैं, किसी का 10 आ रहा है मीन, पीक तो इससे भी ज़्यादा होगा, तो उसमें परेशान नहीं होना। एरोटिक वाल्व पे तकरीबन 10 मीन आना नॉर्मल है और माइट्रल पे तकरीबन 5 आना नॉर्मल है। सो इससे ज़्यादा अगर फिर ग्रेडियंट्स बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई स्नोटिक एलिमेंट आ गया, जैसे कि थ्रोम्बस या पैनस या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। तो अगर हम थ्रोम्बोसिस को सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अर्जेंट इवैल्यूएशन उसकी ज़रूरी है। लेट्स स्किप टू दिस फ्लो शीट, जिससे सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो कि अगर हम प्रोस्थेटिक वाल्व थ्रोम्बोसिस, अब दिस इज़ डेफिनेटली बियॉन्ड द शॉर्ट केस के क्वेश्चंस की इतनी डिटेल आपसे पूछी जाए। सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोस्थेटिक वाल्व स्नोटिक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो उनकी प्रेफरेबल थेरेपीज क्या हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन। कि इफ़ वी आर सस्पेक्टिंग अ प्रोस्थेटिक वाल्व थ्रोम्बोसिस, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ऑब्वियसली एको करनी है, सीटी या फ्लोरोस्कोपी कर सकते हैं वाल्व मोशन देखने के लिए। एंड वंस वी नो कि थ्रोम्बस है तो उसकी आइडियल क्या मैनेजमेंट है। फॉर राइट साइडेड थ्रोम्बस हमेशा फाइब्रोनोलिसिस इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। एंड इफ यू हैव अ लेफ्ट साइडेड थ्रोम्बस, मतलब फॉर एग्जांपल माइट्रल या एओर्टिक के अंदर है, तो उसके अंदर अगर तो पेशेंट के हमने ऑब्वियसली टी करके थ्रोम्बस साइज देखना है। अगर पेशेंट बहुत सिवियरली सिम्टोमेटिक हो गया है, क्लास 3-4 सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें हमने इमरजेंसी सर्जरी करनी है। और अगर बहुत मोबाइल या लार्ज थ्रोम्बस है तो उसमें भी इमरजेंसी सर्जरी करनी है। लेकिन अगर थ्रोम्बस छोटा है 0.8, इस वैल्यू को याद कर लें, 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर से छोटा है, या फिर सिम्टम्स कम है, क्लास 1 to 2 सिम्टम्स हैं, तो उसमें फाइब्रोनोलिटिक थेरेपी भी दी जा सकती है, ठीक है। सो एज अ रूल लेफ्ट साइड के लिए हमने मेनली इमरजेंसी सर्जरी करनी है अगर सिम्टम्स ज़्यादा है या थ्रोम्बस बड़ा है। अगर थ्रोम्बस छोटा है तो लेफ्ट के लिए भी फाइब्रोनोलिटिक दी जा सकती है, वरना राइट पे क्योंकि वैसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें हमने फाइब्रोनोलिटिक ही देनी है। सो सर्जरी प्रेफरेबल ऑप्शन है फॉर अ मोर सीरियस मैटर, एंड फॉर लेसर सिवेरिटी जो है वो फाइब्रोनोलिसिस इज एन ऑप्शन। as far as the bioprosthetic valve thrombosis is concerned, उसके अंदर ये है कि जो पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल हैं उनमें हम वारफरिन से एंटीकोगुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में फॉर एग्जांपल सिवियरली सिम्टोमेटिक हो गए हैं और बायोप्रोस्थेटिक एओर्टिक वाल्व है, तो उसके अंदर ट्रांसकैथेटर वाल्व एंड वाल्व। दिस इज़ थोड़ा सा एडवांस इंफॉर्मेशन हो जाएगी, बियॉन्ड आवर शॉर्ट केस का स्कोप। नहीं भी याद रहता तो कोई मसला नहीं है। फिर hemolysis is a problem seen with older generally prosthetic valves, ball and cage के साथ ज़्यादा होती थी। अगर तो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्टेबल hemolysis और हार्ट फेलियर करा रही है तो फिर उसकी सर्जरी करके उसको बेहतर कर देना बेहतर है, राइट। As far as the regurgitations are concerned,
तो रीगर्जिटेशन के अंदर हमारे पास अगर तो पैरावैल्वुलर रीगर्जिटेशन है और क्लास 3 to 4 सिम्टम्स हैं, इंट्रैक्टेबल हेमोलिसिस है, उन पेशेंट्स के अंदर परक्यूटेनियस रिपेयर भी किया जा सकता है। एंड जिन पेशेंट्स में सिवियरली सिम्टोमेटिक हैं और हार्ट टीम कंसिडर करती है कि बहुत हाई रिस्क है, उनके अंदर अगेन ट्रांसकैथेटर वाल्व एंड वाल्व प्रोसीजर इज रीजनेबल। राइट, so that concludes our another session कि हमने basically जो prosthetic valve की problems हैं उनको कैसे deal करना है। This brings up to our last topic related to the prosthetic valves, which is prosthetic valves in pregnancy. Already हम young females who are not yet pregnant उनमें choice of valve का question है उसको discuss कर रहे हैं। Now those patients जिनमें prosthetic valves हैं उनकी हमने प्रेगनेंसी है और या होने वाली या हो रही है उसको हमने कैसे डील करना है। सो ऑल द पेशेंट शुड हैव एन एको बिफोर प्रेगनेंसी। अगर कोई पैरावैल्वुलर रीगर्जिटेशन है तो उसका परक्यूटेनियस रिपेयर कर दिया जाए, दैट इज़ बेटर। और ऑब्वियसली अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसको पहले डील कर लिया जाए। एनी पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी में जिनको बाद में सिम्टम्स आते हैं उनके लिए ऑब्वियसली एको करना और फिर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती फिर उसमें टी करना इज़ क्लास 1 रिकमेंडेशन। जिनमें जिनमें मैकेनिकल वैल्व्स हैं उन प्रेग्नेंट पेशेंट्स को दे शुड बी इन टर्शरी केयर सेंटर्स, उनको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या बाकी छोटे सेंटर्स में नहीं लें। ऑब्वियसली दे शुड बी लुक्ड आफ्टर हार्ट टीम जिसमें ऑब्स्ट्रिशियन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट सब होंगे, बिकॉज दे विल नीड टू मैनेज द एंटीकोगुलेशन ऑफ द पेशेंट, उसको थ्रू आउट द ट्रामेस्टर्स लेके चलना एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ डिसीजंस जो कि किसी छोटे सेटअप में नहीं हो सकते। इसकी जो हम एंटीकोगुलेशन है उसके लिए भी हम फ्लो चार्ट पे अपने चले जाते हैं, सो दैट विल मेक थिंग्स ईजियर। एनी पेशेंट्स हु हैज़ अ मैकेनिकल वाल्व, प्रोस्थेटिक वाल्व, उसकी ऑब्वियसली हम एंटीकोगुलेशन करनी है, लेकिन एज यू ऑल नो कि वार्फिन के टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स हैं तो वी मस्ट अकाउंट फॉर दैट एज वेल। एनी पेशेंट जिसकी वार्फिन की डोज ये ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में देखा गया है कि लेस दैन 5 मिलीग्राम अगर रिक्वायरमेंट है तो इतने ख़ास उससे प्रॉब्लम नहीं होते, वी कैन कंटिन्यू विद द वार्फिन या फिर वी कैन डू व्हाट वी गोइंग टू डू विद द अदर फ्लो शीट, द अदर आर्म। अगर फॉर एग्जांपल किसी की डोज वार्फिन से ज़्यादा है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप उस पेशेंट की वार्फिन होल्ड कर दें और ऑब्वियसली उसको डोज एडजस्टेड लो मोलेकुलर वेट हेपरिन दें या फिर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की कि APTT 2 टाइम्स से ज़्यादा हो। सेम कैन बी डन अगर वार्फिन की डोज 5 से कम भी है, लेकिन अगर तो 5 मिलीग्राम से कम रिक्वायरमेंट है तो वार्फिन ही कंटिन्यू करना क्लास 2A इंडिकेशन है। सो दैट इज़ द रीजनेबल थिंग टू डू। अगर 5 से कम पेशेंट डोज लेता है वार्फिन की तो उसकी चलने दें। अगर 5 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वार्फिन को बंद करें, उसको क्लेक्सेन पे ऐड कर शुरू करते हैं या फिर अनफ्रैक्चर्ड हेपरिन पे फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप वार्फिन दोबारा शुरू कर दें, साथ एस्पिरिन, एंड बिफोर द सर्जरी इज प्लान्ड या वजाइनल डिलीवरी है या जैसे भी है आप उसमें फिर वार्फिन डिसकंटिन्यू करें, उसको टेम्परेरीली ब्रिज कर लें अनफ्रैक्चर्ड हेपरिन के साथ और सर्जरी के बाद फिर रिज्यूम करते हैं। सो आई होप दैट्स क्लियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे शॉर्ट केस में भी पूछा जा सकता है और कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन आपकी टेस्ट की जा सकती है। सो यू मस्ट बी नोइंग ये प्रेगनेंसी के अंदर हम एंटीकोगुलेशन पेशेंट्स की कैसे मैनेज करते हैं। So that pretty much concludes all the questions that we have. एक ये क्वेश्चन है पेशेंट प्रोस्थेटिक मिसमैच। एक जस्ट छोटी सी बात है, बहुत सारे एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं, एक्चुअली बहुत सारे तो नहीं, बस कोई कोई पूछ लेता है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि है क्या। इफेक्टिव ऑरिफिस एरिया प्रोस्थेटिक वाल्व का अगर तो नॉर्मल नेटिव वाल्व से कम डल जाए तो इसको हम कहते हैं पेशेंट प्रोस्थेसिस मिसमैच। फॉर एग्जांपल आपने एओर्टिक वाल्व का एरिया एको से कैलकुलेट किया या आपसे गलत कैलकुलेट हो गया या सही कैलकुलेट नहीं हुआ,
और आपने जो प्रोस्थेटिक वाल्व डाल दिया है वो पेशेंट की नेटिव वाल्व से छोटा था, तो उसकी वजह से एक फर्दर स्टेनोसिस का एलिमेंट आ जाएगा और हायर ग्रेडियंट्स हमें मिलेंगे, एंड इसको जो चीज़ होगी उसको हम कहते हैं पेशेंट प्रोस्थेसिस मिसमैच। इसकी वजह से हाई ट्रांसवैल्वुलर ग्रेडियंट्स आ जाएंगे और कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि पेशेंट को ज़ाहिर है जो एक स्टेनोटिक लीजन के आते हैं, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आ सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, मोर्टालिटी हो सकती है. So this concludes all the questions that were expected. Yeah, those are commonly asked and even not commonly asked. I've tried to touch all the topics related to prosthetic valves. ये slide है last. I don't want to discuss it at all. I'll share my presentation. ये सिर्फ differences हैं जो ESC guidelines और AHA guidelines के हैं. If anybody wants to go over them, they can. Generally ESC की guidelines इतनी नहीं पूछी जाती, AHA की ही पूछते हैं. Don't overburden yourself. हाँ, अगर आप बिल्कुल A+ graded student हैं, you want to know everything, so this is something I've added for you. Just take this and do it on your own time. I don't want to burden everyone else with these. So that concludes the basic presentation that we've had. And if there are any more questions, so I'd love to take them. Great, great, Dr. Noor. Very precise presentation on prosthetic walls. बड़ी कम देखने को मिलती है इस तरह की presentation generally. और जो आपने सारा knowledge को sum up किया इस presentation के अंदर, तो hats off to you. So I will start the question and answer session, and we will try to do it very rapidly. तो जैसे वो interviews में होते हैं ना rapid fire, तो हम कोशिश करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे questions जमा हो चुके हैं मेरे पास. Sure. So let me take the first question. और पहला जो question था वो आपने डिस्कस कर दिया. What is patient prosthesis mismatch? ये क्वेश्चन हमेशा ज़हन में आ जाता है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये लाया था कि इसको एक दफ़ा क्लियर आउट ज़रूर कर दूंगा. ग्रेट, ये ज़बरदस्त काम किया आपने. अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, सर, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन DVR versus ball and cage valve, because both have opening and closing clicks. I was asked this question in my short case in last attempt. राइट. अच्छा, इसमें ये है कि आपको सिमिलरली अब देखें, जब जो भी वैल्व जिस पोजीशन पे होगा ना, ऑब्वियसली उसकी मैक्सिमम साउंड तो वहीं आती है. जैसे कि माइटल की अगर है तो माइटल के ऊपर ही अच्छी साउंड आएगी, एओर्टिक की है तो एओर्टिक पे आएगी. अगर आपको फॉर एग्जांपल DVR है तो आपको दोनों जगह पे क्लिक्स जो हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव एरियाज़ के अंदर सुनाई दे रही होंगी, और ओवरऑल भी आपको दोनों क्लिक्स जो, क्योंकि देखें नॉर्मल हार्ट साउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, आपको हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वैल्व क्लोजर से. जब दोनों जगह पे वैल्व जो है वो प्रोस्थेटिक लगा हुआ है तो आपको आनी तो मतलब मेटालिक क्लिक ही है, नॉर्मल साउंड तो आएगी नहीं. तो आप जब भी जहाँ भी सुनेंगे आपको दो मेटालिक क्लिक्स आ रही हैं. अब अगर बॉल एंड केज वैल्व है तो उसका ओपनिंग क्लिक जो है वो ज़्यादा ऊंचा होता है, और आपको वो दोनों क्लिक्स जो हैं वो एक ही जगह पे सुनाई देंगे. और एओर्टिक वैल्व पे जो दूसरा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि माइट्रल वैल्व पे बॉल एंड केज लगा हुआ है, तो माइट्रल वैल्व पे आपको ओपनिंग क्लिक भी सुनाई देगा, क्लोजिंग क्लिक भी सुनाई देगा. और चलें अगर आप वहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड मिस भी कर देते हैं, लेकिन जब आप एओर्टिक एरिया पे सुनेंगे तो आपको सेकंड हार्ट साउंड जो है वो नॉर्मल सुनाई देगा. आपको जैसा मर्जी फर्स्ट हार्ट साउंड, क्योंकि एओर्टिक एरिया पे फर्स्ट हार्ट साउंड इतना अच्छा आपको नहीं ना आता, तो जो वॉट एवर हैपेंड एट माइट्रल एरिया वो वहीं रह जाएगा. आपको एओर्टिक एरिया का साउंड वहाँ नॉर्मल मिलेगा, एंड आप कह सकेंगे कि whatever is happening at the mitral area. So opening and closing click were at the mitral area, both clicks. बट अगर DVR है तो वो आपको दोनों जगह पे दोनों मेटालिक क्लिक्स मिलेगी, एओर्टिक एरिया पे भी वही फाइंडिंग मिलेगी और माइट्रल पे भी वही मिलेगी. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Yeah, that's very nice. डॉक्टर अमन मुकीद का कमेंट है आपके लिए, नूर के लिए. डॉक्टर कह रहे हैं जी, ग्रेट जॉब, बिल्कुल जी, थैंक जबरदस्त यू. काम थैंक करती यू है. जी. सर, कैन यू प्लीज मेंशन डिफरेंट स्कार्स एंड देयर रिस्पेक्टिव सर्जरी? राइट. स्कार देख के पता लग जाए कि क्या हुआ है अंदर. जी बिल्कुल. अच्छा, पहले हम जो है वो लैटरल थोरेकोटमी स्कार छोटा सा होता था या इंफ्रामेमरी स्कार होता था, उससे माइट्रल वाल्व रिपेयर भी होता था, और माइट्रल वाल्व डायलेटिव जो ओपन माइट्रल कमिशरोटमीज हैं वो भी होती थी. अब असेंशली जो है आपको एक ही तरह के पेशेंट्स आएंगे जिनका मिड लाइन स्टेनोटमी स्कार होगा. दैट इज़ द मोस्ट used approach now, and for as far as your exam is concerned, तो most definitely आपको midline stenotomy वाले patients ही आएंगे. I can guarantee that कि आपको midline stenotomy scar वाले ही patients आएंगे.
क्योंकि जो आपकी लैटरल वाली टेक्निक्स हैं दे आर नॉट वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ग्रेट। डॉक्टर अनिला क्वेश्चन पूछ रही हैं, डू वी नीड टू टेल टाइप ऑफ वॉल्व एंड फर्दर सब टाइप्स ऑफ मेटालिक वॉल्व्स आल्सो इन द शॉर्ट केस? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपने कोशिश भी नहीं करनी। ये कहना भी नहीं है कि सर बाय लीफलेट टिल्टिंग टेस्ट है, आपने सिंपल कहना है कि जी ऑन द बेसिस ऑफ माय फाइंडिंग्स the patient has a metallic prosthetic mitral valve which is normally functioning, बस ये लाइन है। और इसमें अगर एक सवाल वैसे शायद कोई पूछ ले, मैं वैसे बता देता हूँ कि अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स मेटालिक और बायोप्रोस्थेटिक की क्या डिफरेंस है। इसमें यह है कि वैसे तो एग्जाम में आपको बायोप्रोस्थेटिक वाल्व आएगा नहीं, बायोप्रोस्थेटिक वाल्व की कोई मेटालिक क्लिक नहीं होती, उसकी सिर्फ बस जो हार्ट साउंड है वो नॉर्मल जैसी होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है। सो बड़ा ही आपके साथ ज्यादती की जाएगी अगर आपको बायोप्रोस्थेटिक वाल्व दे दिया। हाँ, उसमें फिर अगेन आ भी जाए तो आप ऐसे कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। अगेन अगर आप अपनी बाकी सारी इंस्टिंक्ट्स पे रिलाई करें कि पेशेंट का मिडलाइन स्टेनोटॉमी स्कार है, आपने देखा कोई वीनस हार्वेस्टिंग नहीं हुई हुई, सो यू श्योर के पेशेंट का कैबेज नहीं हुआ, हाथ आपने देख लिया कोई रेडियल नहीं निकाली हुई, नीचे देख ली कुछ सेफनेस वेन्स नहीं निकाली हुई, तो यू श्योर के कोई प्रॉब्ली वाल्व से रिलेटेड ही बात है। और उसमें फिर आपको मेटालिक क्लिक नहीं मिल रहा, बस हार्ट साउंड ही आ रहे हैं। और जाहिर है वो अब आप ये आपके लिए गेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़े ऊंचे ऑब्वियसली बहुत सारे सुने हो तो फिर आप बता सकते हैं, बट आपको बाकी सब ठीक लग रहा है, कोई मेटालिकनेस नहीं है, तो मे बी देन यू कैन से कि सर प्रोबेबली शायद बायोप्रोस्थेटिक वाल्व है। जस्ट बी अनश्योर, दैट विल बी फाइन। वैसे बायोप्रोस्थेटिक वाल्व एग्जाम में एटलीस्ट पिछले बहुत 5 सालों में नहीं आए, और एज फार एज आई थिंक जो करंट लीडरशिप है आई थिंक उसमें ऐसा नहीं हो गया बायोप्रोस्थेटिक है, मेटालिक प्रोस्थेटिक ही आते हैं और उनकी उसी तरह से क्लिक होती है। और आपने बिल्कुल भी वाल्व की टाइप बताने की कोशिश नहीं करनी, वो एक ऐसा खड्डा है जिसमें आपको एग्जामिनर गिरा लेगा और आपको कभी बाहर नहीं जाने देगा। ये आपने तो शॉर्ट केस में सुसाइडल अटेम्प्ट है ये। आपने शॉर्ट केस में बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी। एग्जामिनर को देखें, अगर आप खुद कुछ नहीं बताते ना उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरी बात याद रखें। एग्जामिनर को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको पास करने के लिए वो आपसे सवालों से निकलवा लेगा, वो एग्जामिनर को मौका दें। खुद एक्स्ट्रा बता के कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, फंसने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अपनी इंफॉर्मेशन को उस तक लिमिट करें जितनी ज़रूरी है। एग्जामिनर खुद आपसे हर चीज़ पूछ लेगा जो उसको डाउट होगा कि इस बंदे को पास होने के लिए बतानी चाहिए। ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू शो दी, ओके, जो स्लाइड्स की बात कर रहे हैं मैं डॉक्टर नूर से आई विल रिक्वेस्ट कि ये खत्म होने के बाद वेबिनार तो मैं इनसे ले लूँगा प्रेजेंटेशन एंड आई विल मैं शेयर आपको विद यू। शेयर कर दूंगा, मोस्ट वेलकम, जिसको चाहिए प्लीज़ फ्रीली शेयर करें। ग्रेट। डॉक्टर मदीहा इलियास पूछ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, एज ऑल दी प्रोस्थेटिक वॉल्व्स आर इनहेरेंटली स्टेनोटिक, जी बिल्कुल, ऑल द इज दैट प्रोस्थेटिक वेल्व्स आर इनहेरेंटली स्टेनोटिक। stenotic, as that stenotic, so that stenotic murmur is fairly audible, yes or no? नॉट फेयरली ऑडिबल, बड़ा हल्का सा आता है, उसको आपने एग्जाम में थ्रोम्बोसिस नहीं बना के आ जाना कि या कि कोई और मतलब वो बना दें। फॉर एग्जांपल एओर्टिक वाल्व के ऊपर आपको एक छोटा सा शॉर्ट सिस्टोलिक मर्मर अगर आ रहा है तो ये नहीं कहना कि सर एओर्टिक वाल्व थ्रोम्बोसिस लग रही है। शॉर्ट सिस्टोलिक सा आपको पहली बात है थ्रोम्बोज्ड वाल्व एग्जाम में तो नहीं देने वाले, वो पेशेंट काफ़ी सिक होते हैं। सो मतलब क्लैरिफाई ये बात करने का मकसद ये था कि उस वक्त इस दायरे एग्जाम में बड़ा कुछ जेन में चल रहा होता है, आपने सुना, आपने पता चल गया कि प्रोस्थेटिक वाल्व है, मिडलाइन स्कार था, आपको क्लिक भी आ रही थी, आपने रखा, आपको पता चल गया एओर्टिक है। वहाँ आपने जब स्टेथ रखा तो आपको हल्का सा एक शॉर्ट सिस्टोलिक मरमर आ रहा था, तो आप उसको ये ना कहें कि सर इसको एएसबी है या ये वाल्व थ्रोम्बोज्ड है या ये ऐसे है। ये कहने का मकसद आपको ये समझाना था कि छोटा सा शॉर्ट सिस्टोलिक मरमर हो सकता है, नहीं भी होता, लेकिन छोटा सा शॉर्ट सिस्टोलिक मरमर को, सिस्टोलिक से मुराद ये है कि स्टेनोटिक वाली साइड पे, जिस तरह अगर माइट्रल पे सिस्टोलिक करेंगे तो वो तो रीगर्जिटेशन हो जाएगी ना, रीगर्जिटेंट नहीं, स्टेनोटिक मरमर हो सकता है, रीगर्जिटेंट मरमर हमेशा एबनॉर्मल होता है। आई अपोलोजाइज, मैंने जहाँ जहाँ सिस्टोलिक का है दैट आई डोंट मीन दैट। स्टेनोटिक मरमर जो हैं जैसे कि एएस एओर्टिक पे वो एएस टाइप मरमर जो होगा, और वहाँ पे माइट्रल पे डायस्टोलिक मरमर वो बन जाएगा। तो जो स्टेनोटिक मरमर्स हैं वो इनहेरेंट होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट, ये नहीं कि बहुत ऊंचा कोई शोर शराबा आ रहा है। वैसे ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि वो सिक पेशेंट्स होते हैं, वो आपके लिए कभी नहीं लाएंगे।
ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। ओके, स्कार्स हमने डिस्कस कर ली हैं। और सर प्लीज डिस्कस डायमेंशन लेस इंडेक्स। डायमेंशन लेस इंडेक्स। हाँ, डोंट नो ये अभी थोड़ा सा मुझे मजीद आप जो भी क्वेश्चन जिन्होंने किया है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस पर्सपेक्टिव में ये पूछना चाह रहे हैं डायमेंशन लेस इंडेक्स। हाउ टू मैं आई डायग्नोज should I take the next question or you want to say नहीं something नहीं, more? मैं ये कहना चाह रहा था कि आई एक्चुअली डोंट हैव वेरी गुड आइडिया। इफ यू वांट आई कैन लुक इट अप एंड कम बैक टू यू। ओके ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। डॉक्टर रमीज पूछ रहे हैं सर हाउ टू डायग्नोज स्लो राइजिंग पल्स क्लिनिकली, एओर्टिक स्टेनोसिस बिल्कुल की बात ठीक कर है, रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लो राइजिंग पल्स जो है, अगर आपने एक दफ़ा जो है वो पैल्पेट कर ली तो आपको यकीन मानने कभी नहीं भूलेगी। अब मैं एक्चुअली जो है वो इस ऑनलाइन तो आपको बताना और समझाना हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। स्लो राइजिंग पल्स बिल्कुल जैसे उसका नाम है उसी तरह ही फील होती है। यू विल फील कि ये पल्स ग्रेजुअली अपनी इंटेंसिटी में बिल्ड हो रही है और लेट पीक हो रही है। एंड जो मतलब ये अपने नाम से है। आप प्लीज, अगर कोई आपने मोस्ट लाइकली सिवियर एएस का केस नहीं मतलब नहीं मौका मिला होगा, जरूर देखें। इट्स आई कैंट रियली एक्सप्लेन इट। ये अपना जैसे नाम है, ये बिल्कुल ऐसी है। वो पल्स करोटेड पे आप हाथ रखें, आपको स्लो राइजिंग फील होगी और लेट पीकिंग फील होगी। यू विल फील कि आहिस्ता आहिस्ता अपने कैरेक्टर में अपने इंटेंसिटी में बिल्ड होती है और फिर जिस तरह एक नई बीट होती है तो फिर दोबारा ये सेम प्रोसेस होता है। तो इट्स एज इट्स नेम सेज। एंड ये चीज़ सिर्फ पैल्पेट करने से होगी। या एटलीस्ट आप आ जाएं या किसी पेशेंट में आपको दिखा सकता हूँ इस पे ऑनलाइन, तो बताना थोड़ा। फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है, फेयर इनफ। अच्छा जी, तो मैं वो क्वेश्चंस थोड़े ऑमिट कर रहा हूँ जिनका मुझे लगता है कि सवालात के जवाब आपको गाइडलाइंस के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं उनको मैं डॉक्टर श्योर। नूर से पूछूं। हाउ टू नो, डॉक्टर मदिया पूछ रही हैं, हाउ टू नो अबाउट द डिजीज फॉर विच द वॉल्व वाज रिप्लेस्ड। गुड क्वेश्चन मदिया साहब। आपसे अच्छे सवाल की उम्मीद थी वैसे। तो ये है कि मैंने थोड़ा सा ब्रीफली बताया था ये। आप बाकी अगर आप इसमें अगेन देखें, एक अच्छी चीज़ होगी, मैं इसमें और भी फर्दर एक पॉइंट ऐड करता जाऊँ कि प्लीज़ एग्जाम में आपने इसको, जिस तरह हम अपने वर्ड्स में कहते हैं कि कुछ चक्का चौका नहीं मारना। प्लीज़ आपने बिल्कुल स्टार कैंडिडेट बनने की कोशिश नहीं करनी। आपका ऑब्जेक्टिव है एक अनोनिमस कैंडिडेट रहना जो कि चुप करके फेल ना हो। आपने कोई ऐसी कोशिश नहीं करनी कि आपको वहाँ पे गोल्डन स्टार दिया जाए या आपको कोई हॉल ऑफ फेम में बिठाया जाए। एक्स्ट्रा नंबर लेने की कोशिश नहीं करनी, वो नहीं मिलते। अगर तो एग्जामिनर सवाल पूछे तो सवालों के जवाब देते चले जाएं, दैट इज़ द बेस्ट वे। खुद से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं फंसा लेगा फिर। हाँ, अगर आई वुडंट सजेस्ट, आई वुडंट रेकमेंड कि आप ये बताने की कोशिश करें कि अंडरलाइंग लीजन क्या है। हाँ, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आपको ज़रूर इस चीज़ की सेंस होनी चाहिए। उसके मैं आपको थोड़े से टिप्स दे देता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल, आपका एओर्टिक वाल्व रिप्लेस्ड है और एपिक्स बीट आपकी डिस्प्लेस्ड है, तो मोस्ट लाइकली आपका अंडरलाइंग डायग्नोसिस जो है वो एआर होगा, सिवियर एआर होगा, जिसकी वजह से किया। अब फिर वही कहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ कि एपिक्स बीट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। दैट इज़ गोइंग टू आंसर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर एपिक्स बीट आपकी टैपिंग है, वैसे तो लेस लाइकली है कि एमएस खाली के साथ माइटल वाल्व प्लेस हो गया हो, वरना वैसे अगर माइटल वाल्व में एपिक्स बीट बड़ी टैपिंग सी है या अनडिस्प्लेस्ड है तो प्रोबेबली माइटल वाल्व वुड बी द कॉज। अगर माइटल वाल्व रिप्लेस्ड है और अब अगर एपिक्स बीट डिस्प्लेस्ड है, हीविंग है, तो क्योंकि मरमर तो देखें जा चुका होगा, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास? इंस्पेक्शन और पैल्पेशन। और उसमें आपके पास फिर कोई ऑब्वियसली आप पैल्पेबल साउंड्स वगैरह भी नहीं रहेंगी। हाँ चले, मे बी अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कोई साउंड रह जाए उसमें आप इधर वेज कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी वजह से हो सकती है, एमएस की वजह से, एमआर की वजह से भी। सो एपिक्स बीट विल, इन शॉर्ट वर्ड्स, एपिक्स बीट विल हेल्प यू डिटरमिन कि अंडरलाइंग डायग्नोसिस क्या था, अगर खास तौर पे एक वाल्व रिप्लेस्ड है तो। क्योंकि स्टेनोटिक लीजन्स में एपिक्स बीट अनडिस्प्लेस्ड रहेगी और वॉल्यूम ओवरलोडेड में जैसे कि एआर और एमआर है उसमें डिस्प्लेस हुई होगी। तो आप वो बड़ा अच्छा उस पर कमेंट कर सकते हैं और एग्जामिनर बड़ा खुश होगा सुन के। खास तौर पे जब आप लॉजिक देंगे कि सर क्योंकि एपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड है और हीविंग है, सो आई थिंक मोस्ट लाइकली एआर था जिसकी वजह से इस पेशेंट का एओर्टिक वाल्व रिप्लेस किया गया, या एटलीस्ट डोमिनेंट हुई था। ओके जी,
So the next question is, I don't know the name. Assalamualaikum Sir Hasib and Sir Noor. Very detailed and comprehensive talk. What about triple valve replacement? वो चाह रहे हैं जी आप थोड़ा कमेंट करें ट्रिपल valve replacement के बिल्कुल ठीक है. ट्रिपल वाल्व रिप्लेसमेंट पे बात हो सकती है. एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न्ड आपको नहीं आएगा. ओके ओके. आई वुड रिकमेंड कि ये जो सारे ऑफ टॉपिक्स हैं लेट्स डिस्कस देम अनदर डे, क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल 1.5 आवर मार्क. हाँ. तो डायमेंशनल सिंटेक्स जनाब वो देख लीजिएगा आप. ये प्रोस्टैटिक एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस के लिए होता है, उसका क्राइटेरिया होता है, रट्टे वाली बातें वो आप देख लीजिएगा. हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है. सर व्हाट वुड बी आवर रिप्लाई इफ एग्जामिनर आस्क्स दैट हाउ विल यू फॉलो द पेशेंट ऑफ प्रोस्टैटिक वॉल्व क्लिनिकली. बल्कि मैं इसमें ऐड भी कर देता हूँ थोड़ा, आप इसको सारा एक बार कवर अप कर दीजिएगा. थोड़ा सा आपने बताया भी था कि वो जो काउंसलिंग वाला हिस्सा है ना, कि प्रोस्टैटिक वॉल्व वाले पेशेंट को अपने काउंसलिंग में क्या बताना है, आईएनआर के बारे में क्या बताना है, खाने के बारे में क्या बताना है, वो भी ऐड कर दीजिएगा साहब. बिल्कुल ठीक है. एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आई एम एक्चुअली सॉरी कि ये मिस हो गया. ये मुझे कवर करना चाहिए था वैसे भी एज अ डिटेल्ड क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज़ वन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर शॉर्ट केसेस, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. और आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है, आपसे पेशेंट भी पूछ सकता है. डेफिनेटली आपको आना भी चाहिए. प्रोस्थेटिक वाल्व इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीजन, और इससे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये एक्चुअली इट सॉर्ट ऑफ ब्रीफली फॉल्स हमारी जो पहली हमने बात की थी कि जब भी आपने किसी का वाल्व रिप्लेस करना है तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट factor that will determine is your shared decision with the patient. You must explain all the risks and all the benefits of both the valves. ये prosthetic valve है, उसके साथ जो है वो या मैकेनिकल प्रोस्थेटिक है, उसके साथ एंटीकोगुलेशन है लेकिन वो लाइफ लॉन्ग है. उसके साथ कोई रीसर्जरी की चांसेस हाईली मतलब लेस टू नन है. बट एंटीकोगुलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको सारी ज़िंदगी रहनी पड़ेगी. बायोप्रोस्थेटिक वाल्व है, उसकी लाइफ स्पैन कम है. यू माइट नीड अ रीसर्जरी, यू माइट नॉट, बट प्रोबब्ली यू विल. बट उसके साथ सिर्फ 3 to 6 months एंटीकोगुलेशन एंड बाद में you just need to take an aspirin. This is one thing that you need to tell the patient and make them, मतलब help them to choose. You don't have to choose for them, you can assist them in choosing. And if the patient chooses for mechanical valves, so here obviously your discussion needs to continue to tell them all the lifestyle changes that they need to do. You need to identify all the food items for them जो कि INR values को change करते हैं. You need to ensure them a few basic fundamental facts कि आपने anticoagulant एक ही brand name का लेना है. Different companies can give you different effects. अगर आप मेरीवान लेते हैं तो मेरीवान ही लेनी है. ऐसा नहीं है कि आज मेरीवान ले ली, कल वॉरफिन ले ली, तीसरे दिन कोई और चीज़ ले ली, कल कोई अमेरिका से ले आया मैंने वो खाना शुरू कर दी. ये नहीं करना. आपने एक ही ब्रांड लेना है बिकॉज उसकी हीमोडायनामिक्स माइक्रो लेवल पे जाके डिफरेंट होंगी. सिमिलरली आपने INR एक ही जगह से कराना है. डिफरेंट जगहों की लैब वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, आपके रिजल्ट्स फ़र्क आ सकते हैं. रोज़ नई नई जगह से नहीं कराना. एक रिलायबल जगह ले लें और वहीं से ही फॉलो करें. Thirdly, all the different food items are obviously part of your daily life. You must make a list for them and tell them कि ये जो हैं आपकी इसका अफेक्ट दवाई का ज़्यादा कर सकते हैं और ये कम कर सकते हैं. अगर इसमें से कोई आप ऐसी चीज़ ले लें तो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, करा के हमें ज़रूर बताएं. और नेक्स्ट यू मस्ट टेल देम कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लीड स्टार्ट हो जाती है तो दे मस्ट कम टू द इमरजेंसी, दे मस्ट कम टू द डॉक्टर, दे मस्ट गेट अ टेस्ट डन ऑफ एन INR, दे मस्ट रिपोर्ट के ब्लीड हो रहा है. लास्टली जो है वो व्हेन दे गो टू द डॉक्टर, किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो before the doctor prescribes them, they must tell them because an unknown person may prescribe them antibiotics, may prescribe them some other anti-tuberculous drugs, some other drugs which can affect the INR. So these they must mention to the doctor कि जी हमें ऐसा प्रोस्थेटिक वाल्व है, हम वॉरफिन ले रहे हैं तो हमें उस हिसाब से आप करें. So these are some of the basic lifestyle tips that must be given to all the patients, and hopefully if they are willing to follow all this, तो फिर mechanical prosthetic valves young patients में should be the preferable option. Great. Sir, kindly put webinar recording on MIC forum. अच्छा ठीक है. ये ऐसा है कि चले मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता दूँ कि आप YouTube पे जाएं और YouTube पे जाके आप जस्ट टाइप इट MIC डिस्कशन फोरम.
अभी तक जितने वेबिनार्स हुए हैं वो सब भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो होंगे वो भी वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो आपको एक जगह पे आसानी से आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ पे सारे वेबिनार मिल जाएँगे। आज वाला वेबिनार भी मैं कल परसों तक वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। फेसबुक पेज पे प्रॉब्लम ये आ रहा था क्योंकि वो चीज़ें नीचे चली जाती हैं, फिर आपको ढूँढते थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और जो इतना इंटू नहीं है फेसबुक के अंदर, उनको सर्च करने में बहुत ही मसला आता है, फिर वो मुझे मैसेज करते हैं। मेरे लिए उनको समझाना बहुत मुश्किल रहता है। तो मैंने फिर सोचा कि यूट्यूब पे एक चैनल बना देते हैं, तो वहाँ वेबिनार ये पड़े रहेंगे। जब भी प्रोस्थेटिक वॉल्व की बात आएगी, आप डॉक्टर नूर के लेक्चर सुनिए एंड मज़े करें, फिर आप हैं एंजॉय इट, आप एंजॉय करेंगे और दुआ देंगे बाद में। अगर आपका आ गया प्रोस्थेटिक वॉल्व, ट्रस्ट मी, जब आपका प्रोस्थेटिक वॉल्व अगर आ गया, बल्कि मैं कहता हूँ कि अब आ जाए क्योंकि इतना कुछ आपने सुन लिया है, अब जब आएगा तो आप ऐसे छक्के मार के आएंगे आप इंशाल्लाह। एक्चुअली इस शॉर्ट केस की ब्यूटी ये है कि प्रोस्थेटिक वाल्व आपको दोनों साइड्स पे, जो मैंने एक्सप्लेन की थी कि राइट और लेफ्ट पे, एक्चुअली प्रोस्थेटिक वाल्व की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। एग्जामिनर्स की जनरली कोशिश होती है कि एक प्रोस्थेटिक वाल्व आपको दोनों साइड्स पे ज़रूर दें। सो प्रोस्थेटिक वाल्व आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड इट्स अ वेरी मैथमेटिकल केस। और इसमें आप जस्ट फॉलो द बेसिक्स और गो थ्रू व्हाट एवर आई टोल्ड यू, और इंशाल्लाह आपका ये केस 100% होगा। Great, okay. Next question is it necessary in elderly patient to auscultate carotid bruit first before putting finger on it? लॉजिकली तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है। ठीक है, इट मेक सेंस और रिकमेंडेड भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि एग्ज़ाम में इस चीज़ की कोई पेनलाइजेशन है। बिल्कुल आप अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में ये ज़रूर करें, इट मेक्स गुड सेंस एंड गुड लॉजिक। और लेकिन एग्ज़ाम में फिर मैं वही कहूँगा कि इन चीज़ों की जगह भी नहीं है, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप हट के कुछ करें, क्योंकि जब आप हट के कुछ करते हैं ना, एग्जामिनर थोड़ा सा पता नहीं क्यों बायस हो जाता है। ये एक बहुत गलत सी प्रैक्टिस है। इसकी एक्चुअली रीज़न ये है कि हमारे पास कुछ भी जो है वो सॉर्ट ऑफ डिफाइंड नहीं है। हर एग्जामिनर के पास अपनी मर्जी है कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जिस तरह का मर्जी वाइवा ले सकता है। तो आप इसको इस तरह से समझें कि आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसे अपेयर हो रहे हैं ना कि आप एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो आपसे 10 सवाल बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो जो 10 सवाल आपसे मुश्किल हैं और जो आपसे पिछले वाले से 10 आसान सवाल हुए, उनकी वेटेज सेम ही है। आप बस अगर सही सवाल देते चले गए या जवाब, तो आप सही हैं, और आप मुश्किल वालों के नहीं दे सके तो आपको वो कोई उसमें वो नहीं समझेंगे कि यार हमने इसे मुश्किल पूछे थे। एग्जामिनर के लिए मुश्किल आसान एक ही बात होती है, वो उस वक्त ये नहीं ध्यान दे रहे होते। तो आप बस मेरी आपको सजेशन ये है कि आप बस एक इंटरमीडिएट वो रहें, और कोशिश ये रखें कि मैंने फेल नहीं होना, रादर देन कि कोशिश करें कि मैंने पास होना। Great. A few comments for you, Dr. हसान शबीर हैं जो कह रहे हैं एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, स्टे ब्लेस्ड डॉक्टर असली, डॉक्टर नूर। मेरा लूट लिया आपने, थैंक यू जनाब। और नासिर कह रहे हैं वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, आमीन। थैंक यू जी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने साइट पे किए हैं क्योंकि उनके जवाब आपको गाइडेंस में बड़े अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। आज हमने कोशिश किया है प्रोस्थेटिक वॉल्व से रिलेटेड जितने क्वेश्चन क्लिनिकली हैं उनके मैं सवाल के जवाब डॉक्टर नूर से ले सकूँ। सो आई एम गोइंग टू रैप अप द सेशन नाउ। डॉक्टर नूर, आपके लिए 2 मिनट्स। स्टिल यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, एनीथिंग जो आपको लगता है कि अभी भी रहती है ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज़ गो अहेड, फिर उसके बाद मैं क्लोज करूँगा। नहीं, आई थिंक आई हैव टॉक्ड इनफ, और बहुत लंबा सेशन हो गया एक्चुअली। वो बीच में कुछ शॉर्ट केस की बातें करते करते आई रियली होप कि मैं 1 घंटे में रैप अप कर पाऊँ, बट इट्स बहुत लंबा हो गया। और मतलब मैं तो एक्चुअली नहीं, खुद सुन इट वाज वेरी गुड इनफ। और बहुत सी बातें ऐसी प्रैक्टिकल बातें आपने बताई, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों का पता है, ज़ाहिर है जब आप इस स्टेज से गुजरते हैं तो आपको पता लग जाता है। तो ये बातें जो आज आपने बताई ये मैं सारे अपने पार्टिसिपेंट्स को बताऊंगा। खासतौर पे उनका तो काम तमाम हो गया है, जो हमारे फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हैं उनको तो अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बातें डॉक्टर नूर ने आज आप सब लोगों को बताई हैं, इनके पीछे आपको बड़ा भागना पड़ता है और बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाकर आपको ये सारी बातें मिलती हैं। और ये जिस दिन आपका एग्ज़ाम डे आएगा ना, उस दिन आपको इस बात की सही कदर होगी। ये जो बातें डॉक्टर नूर ने आज आपको बताई हैं कितनी कीमती हैं, और जिसको ये बातें पता है और जिसने सही तरह से प्रैक्टिस कर ली इन बातों की, वो बड़ा मुश्किल है कि हार्ड लक हो जाए, अलहदा बात है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि वो किसी शॉर्ट केस में और स्पेशली प्रोस्टेटिक वॉल्व के शॉर्ट केस में वो फेल होकर वापस आ जाए। जी डॉक्टर नूर। बिल्कुल।
हाँ जी, बाकी प्लीज़ फील फ्री टू शेयर माय नंबर एंड ईमेल। कोई भी क्वेश्चंस हैं कोई बाद में क्वेरीज हैं, जैसे वो एक आध क्वेश्चन बीच में था जो नहीं आंसर हो सका, just let me know. I'll try to come up with all the answers and whatever I can do to assist you. Please feel free to contact me. बाकी मैं ये Great. presentation भी आपके साथ share कर दूंगा. Feel free to distribute it. So if there's anything else इससे related, any queries, तो please let me know. ओके, ग्रेट हो गया सर, काम बड़ा बेहतरीन हो गया। मैं अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करूंगा और अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी डॉक्टर नूर का शुक्रिया अदा करूंगा। यूजुअली लोग इस टॉपिक को हाथ नहीं लगाते, बड़ा मुश्किल होता है प्रोस्टैटिक वॉल्व की टिप्स एंड ट्रिक्स समझाना बताना, बट यू हैव डन इट वेरी नाइसली। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक हाइड्रोन फार्मा फॉर दिस स्पॉन्सरशिप, एंड स्पेशल थैंक्स टू, मैं हर वेबिनार में थैंक्स करता आ रहा हूँ, आज भी करूँगा और आगे भी करता रहूँगा, बिकॉज ही डिजर्व दिस। Professor Dr. Zubair Akram Saab, very nice person, thorough gentleman, very humble and always ready to help his colleagues, seniors हैं चाहे juniors हैं, students हैं, जो भी हैं, तो he is always there। तो माशाल्लाह ताला उनको सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। हाँ जी, सॉरी, So इसी with नोट पे मैं एक चीज़ एक कहता चलूँ बिफोर आप सेशन क्लोज करें। सर की आप बात कर ही रहे थे, तो प्रोफेसर जुबैर अकरम के बारे में मैं एक और फर्दर चीज़ कहूँगा कि जितना ज़्यादा ओवर द पास्ट ईयर्स प्रोफेसर जुबैर अकरम ने FCPS कार्डियोलॉजी टू को एक फेयर और very easily accessible एग्ज़ाम बना दिया है। I've seen it transform in front of my eyes. हर एग्जामिनर की फॉर एग्जांपल पहले कोशिश होती थी कि जी हम मुश्किल से मुश्किल केस लेके आएँ, और हम अगर प्रोफेसर साहब जो हैं वो 10 के बजाय 20 केस मंगाते हैं कि उन 10 में से मुश्किल केसेस जो हैं वो मुश्किल तो नहीं, रादर एम्बिगुअस केस कोई ना हो। एग्ज़ाम में 20 से 25 केस की ऑप्शन होती है कि उसमें से 4 या 8 सिलेक्ट करने होते हैं कि वो हों जो कि बिल्कुल क्लासिकल हों, और एक कैंडिडेट्स को जितनी आसानी हो सकती है वो हो। हाँ, अनदर फैक्ट वो यही है कि कोशिश अगेन टू मेंटेन फेयरनेस ये होती है कि एडमिटेड केसेस ना हो, फ्रेश केसेस हों, ताकि आप बेशक जितने मर्जी देखे हों, आपको हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दें अपने बेसिक्स आजमाने का। लेकिन एट दैट पॉइंट वो केसेस बिल्कुल एक लंबी लिस्ट से वो चूज़ किए जाते हैं कि जो बिल्कुल क्लासिकल हो और कोई उनमें एम्बिग्विटी ना हो। ग्रेट ग्रेट, ये बड़ा फेयर हो जाता है एग्जाम में इस तरह से, जब आप इस तरह से छांटी करके लेके आते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें फिर आपके वो जो शिकायत होती है ना कि जी मरमर तो सुनाई नहीं दे रहा था, वो लाउड तो थी नहीं, वो खत्म हो जाती है इसके अंदर। आई एम श्योर जितने भी लोगों ने पिछले 5 साल में एग्ज़ाम दिए, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि शॉर्ट केस में हमें केस की वजह से जो है ना कि ऐसा केस आ गया कि उस पर सारी फेल हो गए। आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं कह पाएगा। Great, great. So with this beautiful note, I'm going to close the session. Thanks to all the participants कि वो अभी तक हमारे साथ हैं, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें ताकि हम मज़ीद अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं वेबिनार हो तो उसको भी कवर करने की कोशिश करें। जो आपकी प्रैक्टिस है उसको ऑनलाइन सेशंस कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, वो एक डिफरेंट गेम है। जो नीड बिल्कुल ऐसी है जो आपको बेड साइड पे खड़े होकर देखे, आपकी मूवमेंट्स पे आपकी करेक्शन करे, आपके बोलने के अंदाज पे आपकी करेक्शन करे, आपकी टोन पे करेक्शन करे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ये बड़ा मैटर करती हैं, तो वो आपने खुद करना है, उसको हम ऑनलाइन तरीके से बड़ा मुश्किल है उसको कवर अप करना। सो ये आपने मैसेज जरूर लेके जाना है, कोशिश करें कोई तरीका कार निकालें। मुझे पर्सनली अभी तक नहीं पता कि CPSP कैसे एग्ज़ाम लेने जा रही है कि मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकूँ। जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं। सो अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, द नेक्स्ट वेबिनार। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।